Good evening, everyone. I welcome you all in this latest webinar by our Gurugram Women Chartered Accountant Association. जो पहले से हमें सुन रहे हैं उन्हें पता होगा, अदरवाइज मैं बाकी के लिए बताना चाहूंगी। जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है, इसका मेन पर्पज है जो हमारे विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको एम्पावर करना। किसी भी वजह से किसी भी तरह का ब्रेक लिया हो या वो जॉब के बाद प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं, तो किस तरह से जो छोटी छोटी जो डेली रूटीन की चीजें हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में, उसके बारे में कैसे वो लर्न कर सकते हैं, कैसे उनको पता लग सकता है कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो टू स्टार्ट विथ हमने ये वेबिनार स्टार्ट किया है जो हम ऑलमोस्ट हर वीक करवाते हैं। अच्छे बड़े हम स्पीकर्स को बुलाते हैं सो दैट कि हम सबको जानकारी हो सके कि हमारे प्रोफेशनल क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और हम किस फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं सीए अनमोल गुप्ता जी। वेलकम सर। थैंक यू मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक हमने रखा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज या कल में हमें कर लेनी चाहिए, तो इसीलिए हमने एक ईयर एंड कंप्लायंस वाला टॉपिक रखा है। मैं हमारे जो आज के स्पीकर हैं सीए अनमोल गुप्ता जी, उनका एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूंगी। ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लॉ ग्रेजुएट, having a vast experience of working extensively in the litigation of indirect taxation. And during this tenure, he has worked independently on the various tax litigation matters like drafting of various replies and appeals, and had successfully represented various against various tax authorities also. He has authored many publications on the indirect taxes, including recently uh, authored a book on the waiver scheme of Section 128A of GST Act, जो भी benefit of interest and penalty के waiver की आई है, MNST scheme you can say. And he has also delivered multiple lectures on indirect taxations in various branches and study circles of the Institute of Chartered Accountants of India and various other professional forums. He is also appointed as chairman of GST Committee of Progressive Federation of Trade and Industry, and is also convener of GST chapter in Gurugram of Federation of Indian Industries (FII), and presently is working as an indirect tax litigation head at Apra and Associates, a very famous chartered accountant firm, I must say. So with this, I welcome you, sir, and now the stage is yours. Thank you, ma'am. My voice is audible, right? Yes. Yeah. So a very good evening to all. At the outset, would like to thank the association for giving me the opportunity to come before you all today and discuss some of the very important aspects of the GST regime. So, the topic that has been given to me today is year-end compliances and the litigations under GST. I have added one more small topic into that, the changes which have been brought into effect from 1st of April 2025. So, two important changes I am going to discuss regarding ISD and hotel industry. Other than that, I am going to discuss in the topics of litigation under GST. I am going to discuss what are the various sections under the GST law regarding the litigation proceedings from the very amnesty, from the very assessment till the High Court. We are going to discuss the various provisions in the GST law. And along with that, I'm also going to give you a small gist of how to draft the reply to any notice or how to draft an appeal. So with this, let us start the session for today. My screen is visible, ma'am. Uh, मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. So, first of all, let us discuss year-end compliances and changes in GST law. So, friends, before discussing year-end compliances, there's a very important thing that I have just added because at the time we were finalizing this webinar, the topic for this webinar, this particular amendment did not come into force, but it has come very recently, just 2 3 days back only. So I thought of adding this topic also because it is a very important change that has been
notified by the government very recently. So this change is regarding the waiver scheme, just like Asha ji told us, the waiver scheme under Section 128A. So before discussing the change, would like to give you a brief background of what Section 128A is. सो फ्रेंड्स सेक्शन 128A जो है वो हमारा जीएसटी लॉ में 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो जून 2024 में हुई, सॉरी जुलाई 2024 में हुई, उसके बाद उसमें प्रपोज किया गया था कि हम जीएसटी के पहले 3 साल, दैट इज 17-18, 18-19 एंड 19-20, हम 3 साल के लिए एक वेवर देंगे असेसीज को, बोनाफाइड असेसीज को। मतलब अभी मैं आपसे दूसरे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूंगा सेक्शन 73 क्या होता है और सेक्शन 74 क्या होता है, लेकिन हमारे जीएसटी में दो प्रावधान है, दो सेक्शंस है जिसमें प्रोसीडिंग्स की जा सकती है असेसी के अगेंस्ट। वन इज सेक्शन 73 एंड वन इज सेक्शन 74। सेक्शन 73 जो है वो बोनाफाइड मिस्टेक्स, मतलब जिन मिस्टेक्स के पीछे मेरा कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं होता कि सरकार के साथ मुझे कोई चोरी करनी है, मुझे टैक्स बचाना है, मुझे पता है मैं फिर भी पे नहीं कर रहा, जहां वो केसेस नहीं है, जहां जेन्युइन मिस्टेक्स के चलते टैक्स की पेमेंट नहीं हुई है या आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया है मैंने, उनको कहा जाता है बोनाफाइड मिस्टेक्स और वो सेक्शन 73 में कवर होती है। लेकिन ऐसी मिस्टेक्स जिनमें मैं जानबूझ के गलती करता हूं, मैं जानबूझ के नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करता हूं या जानबूझ के गलत आईटीसी लेता हूं, जैसे मुझे पता है कि एक क्रेडिट मेरा ब्लॉक क्रेडिट है लेकिन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि मैं सरकारी गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाना चाहता था, मैं फ्रॉडुलेंट इंटेंट चाहता था, मैं एक अनड्यू बेनिफिट लेना चाहता था, वो केसेस सारे सेक्शन 74 में कवर होते हैं। तो ये जो स्कीम लाई गई वो पहले 3 साल के लिए 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए लाई गई, और जेन्युइन केसेस के लिए, मतलब जहां जहां पे आपके पास शोकोज नोटिस और ऑर्डर पास हुए सेक्शन 73 में, उनके लिए लाई गई। कंडीशन क्या है सर इसकी? इसकी कंडीशन ये है कि जहां पे आप 31 मार्च 2025, मतलब कल कल का जो है लास्ट डे बचा है, अगर आप 31 मार्च 2025 तक उसकी पेमेंट कर देते हैं और 30 जून 2025 तक आप उसकी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, तो आपको 100% ऑफ द टैक्स पेमेंट जो कि आपकी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया, डिपार्टमेंट ने डिटरमाइन किया एज पर द शोकोज नोटिस और द ऑर्डर, इफ यू मेक द पेमेंट ऑफ दैट, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का 100% वेवर हो जाएगा। मतलब जहां पे आप मान रहे हैं आपसे गलती हुई है और वो अननेसेसरी लिटिगेशन में आपको जाना पड़ रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट और पेनल्टी की वजह से डिमांड लेट सपोज डबल हो गई है, क्योंकि अगर 17-18, 18-19 की कोई लायबिलिटी आज आपके अगेंस्ट खड़ी है और वो 100 रुपए के टैक्सेस हैं, तो इंटरेस्ट 18% के हिसाब से वो डबल से ज्यादा हो जाता है। तो जहां पे वो इंटरेस्ट पेनल्टी की वजह से डिमांड डबल हो गई है, डबल से ज्यादा हो गई है, वहां पे सरकार ये बोलती है कि आप जेन्युइन केसेस में आप टैक्स की पेमेंट हमें कीजिए 31 मार्च तक, लिटिगेशन अननेसेसरी मत परस्यू कीजिए और हम आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दे देंगे। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो नोटिफाई हुए। पहला चेंज क्या है कि अगर मैं जीएसटीआर 3B से पेमेंट कर रहा हूं तो वो भी मेरी स्कीम में एडजस्ट की जा सकती है। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि जो करंट सिनेरियो है उसमें सिर्फ दो ही मोड्स ऑफ पेमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो मैंने आपको बोला 100% टैक्स जो एससीएन या ऑर्डर के हिसाब से डिटरमाइंड है, यू नीड टू पे बिफोर 31 मार्च, वो या तो अगर आप शोकोज नोटिस के अगेंस्ट स्कीम में जा रहे हैं तो डीआरसी 3 में आपको पे करना होगा, और अगर आप ऑर्डर के अगेंस्ट एडजुडिकेशन या अपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट स्कीम में जा रहे हैं तो आपको ई लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट एंट्री पास करके ही जो है पेमेंट दिखानी होगी। दैट इज द ओनली टू मेथड्स व्हिच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस स्कीम एज अ वैलिड मेथड फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर दिस स्कीम बाय 31 मार्च 2025। हाउएवर अभी क्या हुआ, 17-18 के मान लीजिए कोई ड्यूज है, कोई मैंने आईटीसी गलत ले लिया था, 18-19, 19-20 तक बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें एसएससीज ने पेमेंट जीएसटीआर 3B से ऑलरेडी वो गलती को मानते हुए एक्सेप्ट करते हुए जीएसटीआर 3B से पेमेंट कर दी है। आज अगर देखा जाए तो हमारे जीएसटी लॉ में सिर्फ दो ही तरीके से पेमेंट हो सकती है, या तो 3B से या डीआरसी 3 से। तो जहां आप डीआरसी 3 से पेमेंट कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो डीआरसी 3A आप भरिए और आपका वो ई लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। तो डीआरसी 3 को तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन 3B को रिकॉग्नाइज नहीं करा था 27 मार्च 2025 तक। लेकिन अब सरकार ने सर्कुलर नंबर 248/05/2025 27 मार्च 2025 को निकाला, जिसमें क्लेरिफाई किया कि जीएसटीआर 3B से भी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मोड ऑफ पेमेंट, और उसको भी जो है माना जाएगा कि आप इसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं स्कीम में। लेकिन इसकी दो कंडीशंस रहेंगी। पहली कंडीशन
क्योंकि ये स्कीम 1 नवंबर 2024 को नोटिफाई हो चुकी थी और आपको पता था 1 नवंबर 24 के बाद कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो ये दो ही मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए 1 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने 3B से पेमेंट किया तो ओनली देन इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। अगर 1 नवंबर 24 के बाद भी आपने 3B से पेमेंट किया तो गलत है, आपको उसका रिफंड लेना पड़ेगा और आपको पेमेंट DRC 3 या क्रेडिट एंट्री नी लायबिलिटी रजिस्टर से ही करनी पड़ेगी। सेकेंड कंडीशन, जो आप एप्लीकेशन में फाइल करेंगे दैट विल बी वेरीफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, बिकॉज 3B में जनरली आप 100 रुपए की पेमेंट है तो 100 रुपए नहीं करते हैं, आप 120 या 150 रुपए पेमेंट करते हैं, क्योंकि आउटवर्ड लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर मंथ की भी उसमें एड ऑन होती है। तो इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने 3B से पे किया वो करा भी है या नहीं करा है, उसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन सबमिट होगी, तो इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। सो दिस वाज दी वन इंपॉर्टेंट चेंज। सेकंड चेंज, जो हमारा जीएसटी लॉ सेक्शन 128 और रूल 164 है, जो अभी तक हमारा कहता था 27 मार्च 2025 से पहले, ये अब सर्कुलर नहीं है, ये एक अमेंडमेंट है, इसको सर्कुलर के थ्रू नोटिफाई क्लेरिफाई भी किया गया है। अभी तक जो मेरा लॉ कहता था, रूल 164 और सेक्शन 128 है, वो ये कहता था कि अगर आपका एक सिंगल शोकॉज नोटिस आया जो कि 2019-20 और 20-21 दोनों कवर करता है, मतलब आपकी स्कीम में आपको 17-18, 18-19, 19-20 3 साल का वेवर मिलता है, तो अगर कुछ पीरियड ऐसा इन्वॉल्व है जो इस पीरियड जिसका वेवर आपको अलाउड है और कुछ पीरियड ऐसा इन्वॉल्व है जिसका वेवर नहीं अलाउड है, मतलब अगर 19-20 की 2 लाख रुपए की डिमांड है और 20-21 की 1 लाख की डिमांड है, तो आज तक का लॉ आपको 27 मार्च तक का लॉ आपको ये बोलता था कि आपको डीम्ड एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी 20-21 की भी, मतलब आपको पूरे 3 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। आपने अगर कोई अपील फाइल कर रखी है इस 3 लाख रुपए की, तो आपको पूरी 3 लाख रुपए की अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा, और जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस दिन आपको 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी 3 महीने में देना पड़ेगा, तभी जाके आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिलेगा। मतलब जो 20-21, मतलब जो पीरियड आपका स्कीम में कवर नहीं है, उस पीरियड का एंटायर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको डीम्ड एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, अगर आपके एक ही सिंगल शोकॉज नोटिस या ऑर्डर में दोनों पीरियड कवर्ड है, जिस पीरियड का आपका स्कीम में बेनिफिट मिलेगा और जिस पीरियड का नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस आपको जिसका नहीं मिलेगा वो भी आपको डीम्ड एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा अच्छा एक अमेंडमेंट लाया गया गवर्नमेंट द्वारा। 27 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन 11/2025 सेंट्रल टैक्स में लाई गई, और साथ साथ सर्कुलर भी 248 में बात कही गई, जिसमें उन्होंने लॉ को अमेंड किया और ये बोला नहीं, अब आपको डीम्ड एक्सेप्टेंस 1 लाख रुपए की नहीं करनी पड़ेगी, आप 2 लाख रुपए को जो है 19-20 का उतना ही पे कीजिए जो आपका इस स्कीम में कवर्ड है, जो पीरियड स्कीम में कवर्ड है, और आपको जो अपील विड्रॉ करनी है वो भी 2 लाख की ही करिए, मतलब आप पार्ट अपील विड्रॉ कर सकते हैं, विच इज अ बिग बिग रिलीफ आई फील फॉर द टैक्स पेयर्स, क्योंकि अब आपको पार्ट अपील विड्रॉ करने का भी मैकेनिज्म आ गया है कि आप सिर्फ 19-20 तक की ही अपील विड्रॉ करिए, और 20-21 का केस मतलब 1 लाख रुपए का टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी को आप लिटिगेशन के माध्यम से, लिटिगेशन के रूप में परस्यू कर सकते हैं, अपनी अपील परस्यू कर सकते हैं, और आपको जो है वेवर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट और पेनल्टी का मिल जाएगा, 2 लाख रुपए ही जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रोविजन आया है, ये अमेंडमेंट आई है 27 मार्च 2025 को, और इसकी लास्ट डेट पेमेंट की थी 31 मार्च 25, तो कुछ ऐसे एसएससीज भी होंगे जो 27 मार्च तक ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं पूरा 3 लाख रुपए, क्योंकि लॉ तो हमारा 27 मार्च तक यही कहता था कि आपको 3 लाख रुपए पे करने तभी आपको वेवर मिलेगा। तो जो लोग पे कर चुके हैं उन लोगों को कोई रिफंड 1 लाख रुपए पे नहीं मिलेगा, और वो पुराने हिसाब से ही चलेंगे, उनको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। दिस आई फील इज रॉन्ग। गवर्नमेंट को इसका भी आपको रिफंड अलाउ करना चाहिए था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी हो सकता है गवर्नमेंट ने इस चीज को नहीं अलाउ किया है। तो जिन लोगों ने 27 मार्च तक का वेट किया उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने नहीं वेट किया उनका नुकसान हो चुका है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक ईयर एंड कंप्लायंसेस, मैंने इस टॉपिक को 4 भागों में बांटा है, जो आपको 31 मार्च तक आई फील एज पर द जीएसटी लॉ आपको 31 मार्च तक करने की जरूरत है। दो कल का दिन ही बचा है, लेकिन जो भी आपको आज और कल में करने की जरूरत है उसको मैंने चार ब्लेस भागों यू। में बांटा है। उसको मैंने 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट मैंने रखा है कि क्योंकि अभी हम 31 मार्च को आ जाएंगे तो हमारी क्लोजर ऑफ बुक्स हो जाएगा, ईयर इन बिटवीन द ईयर इट इज डिफिकल्ट फॉर द
टैक्स पेयर एज वेल एज द कंसल्टेंट टू डू अ रिकंसिलिएशन, बट क्योंकि हम ईयर एंड को अप्रोच कर चुके हैं तो कंपेरेटिवली इट इज इजियर टू डू द रिकंसिलिएशन ऑन एन एनुअल बेसिस। सो देयरफॉर द फर्स्ट टॉपिक विल बी, आप कुछ रिकंसिलिएशंस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा 7 8 10 तरीके की रिकंसिलिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं, जिसको मैं हेल्थ चेकअप या जीएसटी ऑडिट का रूप भी दूंगा, जो आप कर सकते हैं 31 मार्च तक। जिससे अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो या तो अपनी बुक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर आप जीएसटी रिटर्न को जो मार्च की जाएगी 11 तारीख को GSTR 1, और 3 भी जाएगी 20 तारीख को, आप उसमें जो है पेमेंट करके उसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं उस प्रॉब्लम को, उस गलती को, जिससे आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी बचेगा और GSTR 9 9C के टाइम पे आपकी मेहनत भी कम होगी। क्योंकि जनरली ये दिक्कतें हमें GSTR 9 9C के टाइम पे जब हम एनुअल ऑडिट करते हैं तब पता चलती है। सेकंड चीजें जो हम कर सकते हैं, वो जीएसटी लॉ में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो आपको एनुअल बेसिस पे करनी होती हैं, तो वो वेरिफिकेशंस हैं विच वी कैन डू। थर्ड चीजें कुछ फाइलिंग्स हैं जो हमें 31 मार्च तक कर लेनी चाहिए अगर हम उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, आई विल डिस्कस। और फोर्थ, जो वेवर स्कीम में आपको 31 मार्च तक कंप्लायंसेस करने हैं, दैट आई विल डिस्कस। सो सबसे पहले रिकंसिलेशन की बात करें तो क्योंकि अभी मेरा टर्नओवर मोर और लेस, हमारा टर्नओवर फ्रीज हो चुका होगा 31 मार्च को, तो हम अपनी बुक्स की टर्नओवर को GSTR 1, GSTR 3B, जीएसटी ई वे बिल का डेटा और ई इनवॉइस का डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, टू सी कि क्या हमारी कोई टर्नओवर या कोई रिसीट्स ऐसी हैं जिन पे मुझे टैक्स पे करना था लेकिन मैंने टैक्स पे नहीं करा है। देन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरी बुक्स में आ रहा है, क्या मैंने वो 3B में पूरा लिया है या नहीं लिया है या ज्यादा लिया है, और क्या वो अमाउंट मेरे 2A में या 2B में अपीयर हो रहा है। देन जो मेरा आईटीसी का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है मेरी बुक्स में जो 31 मार्च को शो कर रहा है, क्या मेरा ई क्रेडिट लेजर का भी क्लोजिंग बैलेंस सेम है, दैट आई कैन वेरीफाई। फोर्थ थिंग, आपके एक्सपेंडिचर्स मोर और लेस फाइनलाइज हो चुके हैं, तो एक्सपेंडिचर्स पे यू कैन सी कि अगर कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी ऐसी है जो मुझे पे करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं पे करी है पूरे साल में, तो यू कैन इमीडिएटली पे इट ऑफ। अगर कोई एडवांसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको नोट कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, जनरली ये एसएससी से बड़ी बड़ी कंपनी से हम देखते हैं मिस हो जाता है। ये टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को डिस्कस करता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एडवांसेस आए हुए हैं या अनबिल्ड रेवेन्यू या कोई डेफर्ड रेवेन्यू है, क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट में दिखता है, तो कल को जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आएगा आपकी बैलेंस शीट मांगेगा या ट्रायल बैलेंस मांगेगा किसी जीएसटीएन का, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा, और इस पे विद इन अ सेकेंड डिपार्टमेंट आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आपने एडवांसेस पे टैक्स पे किए हैं, अगर वो एडवांसेस टैक्सेबल हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने कोई एडवांसेस अनबिल्ड रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू दिखाया हुआ है तो वी नीड टू पे द टैक्सेस अपॉन देम इफ दे आर टैक्सेबल। देन अगेन, आपकी बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर्स शो होता ही होता है, तो उनके क्लोजिंग बैलेंस से डिपार्टमेंट 180 डेज की कंप्लायंस चेक करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी लॉ में आईटीसी में एक प्रावधान है कि अगर आपने आईटीसी लिया लेकिन आपने जिससे परचेज किया है, जो सप्लायर है, उसका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का कंपोनेंट, मतलब अगर 1000 रुपए की परचेज है, 180 रुपए का जीएसटी है, तो 1180 रुपए पूरे, अगर आपने उसको 180 दिन तक पेमेंट नहीं करी है तो 181st डे पे आपको उसका आईटीसी रिवर्स करना है, और अलोंग विद इंटरेस्ट जो कि फर्स्ट डे से कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई बैलेंस शो कर रहा है तो ऑफिसर आपसे पूरे साल की लेजर मांगेगा क्रेडिटर्स के, तो आप चेक कर लीजिए कि अगर आपका 1 अक्टूबर के बाद से पहले के कोई क्रेडिटर्स तो नहीं है जो आपके कंटिन्यू होते चले आ रहे हैं, जो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो 180 डेज की कंप्लायंस के हिसाब से उसका आईटीसी रिवर्स कर दीजिए, वरना आईटीसी रिवर्सल की भी डिमांड चलेगी और साथ साथ आपका इंटरेस्ट का भी चलेगा। दो, आप जिस दिन इसको पे कर देंगे उस दिन आप इसको री अवेल कर सकते हैं। कोई कैपिटल गुड्स अगर सेल किए, जनरली हम लोग ड्यूरिंग द बिजनेस इसको सेल कर देते हैं, बट रेवेन्यू में हम लोग बाद में दिखाते हैं, तो हम लोग इसको नहीं ध्यान देते कि हमें इस पे जीएसटी भी पे करना है या कोई आईटीसी रिवर्सल करना है। तो अगर आपको कोई कैपिटल गुड्स सेल हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो एज पर द लॉ उस पे जो भी आईटीसी रिवर्सल बनता है वो आप पे कर दीजिए। अनदर पॉइंट विच इज यूजुअली मिस्ड बाय द टैक्स पेयर्स बाय द कंपनीज इज कि मिसलेनियस इनकम या अदर इनकम, कोई छोटी छोटी इनकम्स होती हैं, स्क्रैप सेल हो गया है, कुछ भी हो गया, उस पे अगर जीएसटी पेमेंट रह गई है और अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स पेमेंट कर दीजिए, जो कि आपका बैलेंस शीट में शो करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आपने कोई स्टॉक राइट ऑफ किया है या डिस्पोज ऑफ किया है तो उस पे आपको आईटीसी का रिवर्सल करना है। ये कहाँ से आता है, मेरे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं जिसमें
एच क्लॉज बोलता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ। तो अगर आपने कोई स्टॉक ऐसा है जिसका क्रेडिट लिया था जब आपने वो खरीदा था, लेकिन बाद में वो खराब हो गया, वो राइट ऑफ हो गया, या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको सेल कर दिया, जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगा है, स्क्रैप की तरह से, तो उसका आईटीसी का मेरा रिवर्सल बनता है, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली मिस हो जाता है टैक्स पेयर से ड्यूरिंग द ईयर, इसका पेमेंट करना या रिवर्सल करना। अगर मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स आपने लिए, लेट अस सपोज आपने कोई परचेज किया और उस पे आपने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि आपका सेक्शन 16(2) बोलता है कि जब इनवॉइस आ जाएगा, जब गुड्स आ जाएंगे या सर्विसेज आ जाएंगे, यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। मैंने क्रेडिट ले लिया साहब, अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जाके डिसाइड हुआ कि मुझे उसकी पेमेंट करनी ही नहीं है, मतलब या फिर वो मेरे को चेज ही नहीं कर रहा, वो अपना पैसा मांग ही नहीं रहा है, तो अगर मैं उसका क्रेडिटर का बैलेंस राइट ऑफ कर रहा हूं, तो क्योंकि 180 डेज में मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं क्या फॉर एवर ही नहीं करूंगा 180 डेज क्या, तो इस केस में आई शुड रिवर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और दैट पर्टिकुलर सप्लायर, एंड दैट नीड्स टू बी चेक्ड, बिकॉज ये आपका बैलेंस शीट या पीएनएल के फेस पे साफ साफ दिखता है, तो इस पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है। तो ये अगर कोई आईटीसी रिवर्सल बनता है तो आप कर दीजिए। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो हमें 31 मार्च की ध्यान रखनी है, वो कुछ वेरिफिकेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट 5 वेरिफिकेशंस मैं डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल 42 क्या कहता है, अगर मान लीजिए मैं आउटवर्ड टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई दोनों दे रहा हूं, तो जो मैंने परचेजेस करी है, जो मेरे को इनपुट्स मिला है जिनमें कॉमन इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंगल ऑफिस से टैक्सेबल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ और एग्जाम सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इसी ऑफिस से सीए की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ जो टैक्सेबल है, और लॉयर की सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, एडवोकेट की, जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, जिसमें मेरे को पे नहीं करना, एंड देयरफॉर वो एग्जम्प्ट कहलाती है फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 कैलकुलेशन। अब उस केस में अगर मैं इस ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं, तो वो रेंट जो है वो कॉमन क्रेडिट कहलाता है, क्योंकि उससे मैं सीए की टैक्सेबल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और लॉयर की एग्जाम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उस केस में जो मेरा टर्नओवर का रेशियो होगा, सीए वर्सेस लॉयर की टर्नओवर, उस टर्नओवर के रेशियो में मुझे उस कॉमन क्रेडिट को रिवर्स करना है। मतलब मान लीजिए मेरी 70% टर्नओवर सीए की और 30% टर्नओवर लॉयर की है, तो 70% का ही क्रेडिट मुझे अलाउ होगा। अगर पूरे साल में मैंने 10,000 रुपए का क्रेडिट रेंट को परटेन करता हुआ लिया है, तो 7,000 का ही क्रेडिट मुझे मिलेगा, 3,000 का मुझे रिवर्स करना है। ये सारा आपका लिखा है रूल 42 में। अब सर जो लॉ है रूल 42 का, वो बोलता है मंथली आपको ऑनगोइंग बेसिस पे रिवर्स करना है, लेकिन ये प्रोविजनल बेसिस पे मंथली रिवर्सल हो रहा है। फाइनली आपको, जैसे इनकम टैक्स में आप करते हैं कि एडवांस टैक्स पे करते हैं और फाइनली कंप्यूटेशन होती है, और जो शॉर्टफॉल होता है वो पे कर देते हैं विद इंटरेस्ट, और जो एक्सेस होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है। सिमिलर वे में रूल 42 की कैलकुलेशन भी आप मंथली करते जाते हैं प्रोविजनल बेसिस पे और रिवर्स करते जाते हैं, लेकिन एनुअल बेसिस पे फाइनल कंप्यूटेशन होती है, जिसके हिसाब से अगर कोई शॉर्टफॉल है तो यू हैव टू पे अलोंग विद इंटरेस्ट। तो वो आपको 31 मार्च तक फाइनल कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। सेकेंड चीज, दो, ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो ऐसा नहीं है कि 31 मार्च की ही रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आपकी ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है। आप जब जब जीएसटी 3 भी भर रहे हैं, इन माय हम्बल ओपिनियन यू शुड प्रिपेयर द आईटीसी रजिस्टर। इट विल कम एज अ वेरी वेरी हैंडी डॉक्यूमेंट इन केस यू गेट अ लिटिगेशन रिगार्डिंग आईटीसी। एंड आजकल आप देखेंगे कि जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके इर्द गिर्द सारी लिटिगेशन होती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर मेरी जिन जिन सप्लाईज पे इनवॉइस वाइज डिटेल होती है कि मैंने इस इनवॉइस इस पर्सन से लिया, ये इनवॉइस नंबर था, ये इस मंथ के 2A 2B में आ रहा है, इस डेट पे मैंने पेमेंट की, इस इनवॉइस का ये नेचर था, मतलब मैंने इससे फलाना आइटम खरीदा या फलाना सर्विस अवेल करी, और इसमें इतने का टैक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व था, इतने का इंटरेस्ट कंपोनेंट, सॉरी, इतने का टैक्सल वैल्यू इन्वॉल्व थी, और इतने का टैक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व था, और इतना मैंने आईटीसी लिया है। इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई आईटीसी नहीं लिया तो वो उस रजिस्टर में नहीं आएगा, और जो लिया आपने उसमें वो इसमें आएगा। तो कल को डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने इस फलाना आइटम का आईटीसी लिया, तो यू कैन इमीडिएटली चेक कि क्या मैंने लिया था या नहीं लिया था। तो ये आईटीसी रजिस्टर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपकी मेजॉरिटी लिटिगेशन इससे खत्म हो सकती है अगर आप एक सिंपल सा एक आईटीसी रजिस्टर बना ले। तो अगर आपसे किसी से भी मंथली नहीं बन पाया है तो एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट इसको प्रिपेयर कर लीजिए 31 मार्च तक। थर्ड, सप्लायर वेरिफिकेशन। अगेन ये जो है आपका रेगुलर रिक्वायरमेंट है, बट अगर किसी से मिस हो गया है तो एनुअल बेसिस पे एक बार पूरे सप्लायर्स की, जो पूरे सप्लायर साल हमने जिन जिन सप्लायर्स के साथ ट्रांजेक्शन की, जिन जिन सप्लायर से परचेज की, जिनका आईटीसी हमने अवेल किया,
उनको वेरीफाई कर लीजिए कि क्या उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, क्या उसने पूरे साल की जीएसटीआर 1 और 3 भी भरी, और अगर भरी है और उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है तो उसको वर्किंग पेपर के डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाइए, क्योंकि कल को अगर लिटिगेशन आती है तो आप डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं कि सर मैंने 31 मार्च को पूरे साल का चेक किया था, मेरे सप्लायर एक्टिव भी थे और उन्होंने पूरे साल की जीएसटीआर 1 भी भरी, पूरे साल की जीएसटीआर 3 भी भरी, और साथ साथ मेरे 2A में भी जो है शो कर रहा है। तो इससे आपकी लिटिगेशन रिड्यूस हो सकती है। तो वो आप 31 मार्च को करके रख लीजिए अपनी फाइलों में, जिससे कल को डिपार्टमेंट आए तो आप दिखा सकें। फोर्थ, जो कि बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सही चीज कहा। है, लीगली ये बाइंडिंग नहीं है मैं आपके इसको ऊपर, लेकिन अगर आप ये रख लेंगे तो आपकी इससे लिटिगेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, फाइनेंस एक्ट 2025 में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। मैं एक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल रात को वो नोटिफाई हो चुका है, फाइनेंस बिल 2025। फाइनेंस एक्ट 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, और वो चेंज ये था कि आज तक अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का इनवॉइस रेज किया, उसके 18 रुपए उसमें जीएसटी कंपोनेंट था, तो मैं 18 रुपए सरकार को जीएसटी पे कर देता हूँ एज सुन एज आई रेज द इनवॉइस। Now, let us suppose 6 months after that, I issue a credit note against that invoice due to multiple reasons. Let's suppose वो सर्विस एक्चुअली रेंडर हुई नहीं, वो माल वापस आ गया, एनी रीजन। तो उस केस में मेरे को लॉ अलाउ करता है कि मैं वो क्रेडिट नोट में, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स पे किया था और 100 रुपए का ही क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ जिसमें 18 रुपए का टैक्स रिवर्सल है, तो मैं ऑनगोइंग मंथ में, जैसे एग्जांपल है मैंने इनवॉइस रेज किया अप्रैल में और क्रेडिट नोट रेज किया सितंबर में, तो सितंबर के मंथ में लॉ मुझे अलाउ करता है कि सितंबर के मंथ की जितनी भी लाइबिलिटी होगी, लेट सपोज 50 रुपए जीएसटी लाइबिलिटी थी, तो 18 रुपए एडजस्ट करके मुझे 32 रुपए ही सरकार को पे करना है, क्योंकि 18 रुपए मैं एडवांस में अप्रैल में पे कर चुका हूं। तो क्रेडिट नोट की वजह से मैं अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को एडजस्ट कर सकता हूं। अब फाइनेंस एक्ट 2025 में ये बोला गया है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट करना चाहता हूं तो आई नीड टू मेक श्योर कि सामने वाले ने, जब मैंने अप्रैल के मंथ में 18 रुपए टैक्स पे किया था, तो सामने वाले ने आईटीसी भी ले लिया होगा। तो सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू करने के बाद आईटीसी रिवर्स किया नहीं किया, दिस आई नीड टू वेरीफाई बिफोर एडजस्टिंग इट विद माई 50 रुपीज ऑफ आउटवर्ड लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। बट क्या ये प्रोविजन लागू होने से पहले ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी लॉ के हिसाब से? मेरे ऊपर नहीं थी सर, लेकिन ऑन अ सेफ साइड डिपार्टमेंट मांगता है, आप रख सकते हैं। पूरे साल में आपने कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया है, आप अपने कस्टमर को बोलिए कि सर आपने इसका आईटीसी रिवर्स किया होगा, मेरे को उसका प्रूफ दे दीजिए, और साथ साथ उसकी एक अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन दे दीजिए जो मैं अपनी फाइलों में लगा के रखूंगा, जिससे कल को डिपार्टमेंट आएगा और बोलेगा आपने क्रेडिट नोट कैसे एडजस्ट किए, इसका प्रूफ दिखाइए, सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया है, तो मैं इमीडिएटली दिखा दूंगा। उससे पॉसिबल लिटिगेशन मेरी जो है कर्ब हो जाएगी, मेरी अवॉइड हो सकती है। जो फिफ्थ चेंज, जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे ध्यान रखनी है, वेरीफाई करना है, वो ये है कि ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी मेरी 5 करोड़ की टर्नओवर पे आ जाती है अगर पिछले किसी भी सालों में 17-18 के बाद से मेरा 5 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई है। तो अगर आज तक हुई होती तो आप 24-25 में ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते, ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर रहे होते। लेकिन क्योंकि आज तक वो एप्लीकेबल नहीं हुई है, तो आप ध्यान रखिए कि क्या 24-25 में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गई है? अगर कर गई है तो 1 अप्रैल से आप जो भी बिल रेज करेंगे वो ई इनवॉइस के फॉर्म में रेज होएगा, ई इनवॉइस पोर्टल पे रेज होएगा। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी कम नॉन कंप्लायंस मार्क हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द फाइलिंग्स, कुछ डिक्लेरेशंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो आपको फाइल करनी है 31 मार्च तक सरकार के पास जीएसटी रिजीम में। वन इज, अगर आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, मतलब अगर आप आईएसडी में फॉल करते हैं, तो इन दैट केस आपको 31 मार्च 2025 तक आईएसडी की रजिस्ट्रेशन ले लेनी चाहिए। दो आप उसके बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोई ऑनगोइंग काम कर रहा हूं, मैं ऑनगोइंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं आईएसडी का कंसेप्ट आपको नई नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। अगर मैं ऑनगोइंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इन दैट केस आई शुड टेक द रजिस्ट्रेशन बाय 31 मार्च 2025। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16(4) मेरा ये बोलता है कि किसी भी साल का क्रेडिट मैं, एक मेरे पास सनसेट डेट है, मैं उस डेट तक ही ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल 17-18 की डेट थी 20 अक्टूबर 2018, जो एक्सटेंड हुई, लेकिन ओरिजिनल डेट थी 20 अक्टूबर 2018। सिमिलरली 18-19 की डेट थी 20 अक्टूबर 2019।
बट सरकार ने क्या किया था, सेक्शन 16(4) में जो ये सनसेट डेट दी गई है उसको एक्सटेंड किया था पहले 4 साल के लिए, क्योंकि रिलीफ दिया गया था कि पहले 4 सालों में बहुत असेसीज थे जिन्होंने क्रेडिट टाइमली नहीं लिया था, जिनका क्रेडिट टाइम बार्ड बोल के रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उन केसेस में 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 पहले 4 साल की टाइम लिमिट कर दी गई थी 30 नवंबर 2021। तो अगर किसी के पास भी डिमांड नोटिस या ऑर्डर आया हुआ है इन 4 साल का, जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको जो है 16(4) के हिसाब से आपका क्रेडिट टाइम बार्ड हो चुका है, तो उन केसेस में अब क्योंकि लॉ अमेंड हो गया है, 16(5) इंसर्ट हो गया है जिसमें 30 नवंबर 2021 हो गया है, तो उन सब ऑर्डर्स की रेक्टिफिकेशन जिन जिन्होंने फाइल करनी है वो 7 अप्रैल तक कर लें। उसके बाद रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं हो पाएगी, डिमांड आपके अगेंस्ट कंफर्म्ड खड़ी हो जाएगी, अगर आपने अपील भी नहीं फाइल कर रखी है तो। अगर अपील फाइल करी है, यू हैव टू परस्यू द केस वाया अपील कि 16(5) इंसर्ट हो गया है और अब मुझे नहीं पे करना है या आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपील फाइल नहीं करी है और अगर आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, तो 7 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू फाइल दी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। अगर एलयूटी का रिन्यूअल कराना है या एप्लीकेशन लगानी है 25-26 के एलयूटी के लिए, तो आपको 31 मार्च 2025 तक लगा देनी चाहिए। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनगोइंग बेसिस पे एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो आइडियली आपको एलयूटी के रिन्यूअल की या एप्लीकेशन फ्रेश एलयूटी की लगा देनी चाहिए 31 मार्च तक। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहते हैं 25-26 के लिए, तो CMP2 फॉर्म में आपको 31 मार्च 2025 तक आपको फाइल करना होगा। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो आपको एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है जो 30 अप्रैल 2025 जिसकी लास्ट डेट है, जो GSTR 4 में जाती है। अगर आप GTA सप्लायर हैं तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज की जो डिक्लेरेशन आपको देनी होती है 25-26 की, वो आपको 31 मार्च 2025 तक देनी होती है, जो अनेक्शर 5 या अनेक्शर 6 में दी जाती है। फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज क्या है? GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो 12% फॉरवर्ड चार्ज पे, मतलब वो खुद से टैक्स पे करेगा, 12% रेट ऑफ टैक्स उसका लगेगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा अवेल कर सकता है, या उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो क्रेडिट टैक्स नहीं पे करेगा, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला। सो जो रेसिपिएंट होगा उन गुड्स का, जो जिनके लिए मैं ये गुड्स मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो रेसिपिएंट जो है ही विल पे द टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इस केस में 5% का रेट ऑफ टैक्स होगा और जीटीए को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन वो ऑप्ट करना चाहता है वो 31 मार्च 2025 तक उसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। एक नया चेंज आया है होटल सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जिसमें अनेक्शर 8 जो है मुझे फाइल करना होता है अगर मैं अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहलाना चाहता हूं, और उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 128A में 31 मार्च तक आपको दो चीजें करनी है। एक, आपको अगर कोई पेमेंट ऑफ टैक्सेस करनी है एज पर द स्कीम, तो वो 31 मार्च 2025 तक करनी है, अदरवाइज आप स्कीम में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है, रिट पिटीशन पेंडिंग है या SLP पेंडिंग है, तो वो आपको विड्रॉल की एप्लीकेशन 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देनी है। So that was the first topic that we have discussed regarding the year-end compliances that have to be made. If I sum up, मैंने 4 हिस्सों में बात करी। पहला हिस्सा मैंने बात करी रिकंसिलिएशन, जिसमें मैंने 1 वर्सेस 3B, 2A वर्सेस 3B, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ITC लेजर, एडवांसेस की मैंने बात करी, सन्ड्री क्रेडिटर्स की मैंने बात करी, कैपिटल गुड्स सेल ऑफ हुए हैं तो उसकी बात करी, कोई क्रेडिटर्स का बैलेंस रिटर्न ऑफ हुआ है तो उसकी बात करी, डेफर्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू की मैंने बात करी, जो आपको मेक श्योर करना है कि उसके अकाउंट पे कोई टैक्स पेमेंट रह तो नहीं गई है या फिर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स तो नहीं करना है। सेकंड चीज जो मैंने ईयर एंड कंप्लायंसेस में बात करी वो वेरिफिकेशंस की बात करी, जिसमें मैंने रूल 42 की एनुअल कैलकुलेशन, ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी, उसके अलावा आपका ITC रजिस्टर बनना चाहिए, आपका सप्लायर वेरिफिकेशन होना चाहिए, मैंने उन सब चीजों की बात करी। थर्ड, मैंने आपके साथ फाइलिंग्स की बात करी, जिनमें बहुत तरीके की कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए, ISD वालों के लिए, होटल इंडस्ट्री वालों के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो डिक्लेरेशंस मुझे फाइल करनी है मैंने उनको डिस्कस किया। और फोर्थ टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया ईयर एंड कंप्लायंसेस में, दैट वाज वेवर स्कीम, जिसमें मैंने दो बातें डिस्कस करी कि एक तो आपको पेमेंट करनी है 31 मार्च तक, और एक आपको एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ अपील और रिट पिटीशन आपको फाइल करनी है 31 मार्च 2025 तक। Now moving forward to the second topic for the day, which I'm going to discuss is two important changes which have been brought into effect from 1st of April 2025.
दो चेंजेस है, पहला है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का और दूसरा है होटल इंडस्ट्री का। मीनवाइल अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लास्ट में वो क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में मैं दो चेंजेस को डिस्कस करूंगा, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का और एक होटल इंडस्ट्री का। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो it is a very simple concept. It is not a new concept which has been brought into effect from 1st of April 2025. Though the only change that has been brought by the government from 1st of April 2025 is that the ISD has been made mandatory. So earlier, as per the circular of 2023, I had the option, it was not mandatory, I had the option either I can go for ISD or I can go for cross charge mechanism. However, फ्रॉम 1st of April 2025 आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कर दिया है और आईएसडी की तरह से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब बिफोर गोइंग थ्रू द अमेंडमेंट लेट अस डिस्कस आईएसडी होता क्या है। आईएसडी सर, आईएसडी का कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मेरी मल्टीपल एंटिटीज हैं अक्रॉस इंडिया। लेट अस सपोज एक मेरी ब्रांच है महाराष्ट्र में और एक मेरी ब्रांच है हरियाणा में और मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली में। अब हेड ऑफिस में आपका एडमिन का स्टाफ भी बैठा है, हेड ऑफिस में आपका एचआर का स्टाफ भी बैठा है, हेड ऑफिस से आपकी बिलिंग्स भी हो रही हैं, हेड ऑफिस में आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी खरीद रखे होंगे, हेड ऑफिस में आपने सीए का स्टैट ऑडिटर का बिल भी आता है जो सारी ब्रांचेस को ऑडिट करता है। ऐसे करके बहुत सारे खर्चे आपके पास हेड ऑफिस में आते हैं जो कॉमन इन नेचर होते हैं, जिनमें हरियाणा और महाराष्ट्र का भी हिस्सेदारी है। तो उस केस में आईएसडी का कंसेप्ट आपका पिक्चर में आता है कि अगर मान लीजिए लेट अस सपोज हेड ऑफिस ने 100 रुपए का खर्चा पूरे साल में इंकर किया, जो कॉमन खर्चा है, जो महाराष्ट्र और हरियाणा को भी एट्रीब्यूटेबल है, तो इन दैट केस अगर वो 100 रुपए जीएसटी जीएसटी लेविएबल खर्चा है तो 18 रुपए का क्रेडिट मैं दोनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के मेरे पास दो मेथड्स थे। एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें मेरी कंप्लायंसेस बढ़ जाती हैं, मुझे एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जी आईएसडी वाले को GSTR 6 एक रिटर्न भरनी होती है जिसके माध्यम से वो क्रेडिट जो है अपनी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा तरीका था क्रॉस चार्ज का। क्रॉस चार्ज में मैं सिंपल एक बिल जो है काट देता हूं मेरा टैक्सेबल सप्लाई का, जिसमें दिल्ली का हेड ऑफिस महाराष्ट्र के ब्रांच को और हरियाणा की ब्रांच को एक बिल दे देगा कि 50 रुपए हरियाणा का है, 50 रुपए महाराष्ट्र का है, 9 9 रुपए जीएसटी चार्ज कर लेगा और पे कर देगा, और महाराष्ट्र और हरियाणा 9 9 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी का कंसेप्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब अगर आपका कोई भी कॉमन क्रेडिट है हेड ऑफिस के पास विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर ब्रांचेस, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द हेड ऑफिस टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईएसडी रजिस्ट्रेशन आई मस्ट से, एंड और उसी रेशियो में आईएसडी का आईएसडी की तरह से उसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट इन द टर्नओवर रेशियो उसको जो है करना होगा अपनी ब्रांचेस को, जिन जिन ब्रांचेस का वो क्रेडिट है। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये तो मैंने कॉमन क्रेडिट का एग्जांपल दिया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि महाराष्ट्र की ब्रांच का रेंट मेरे दिल्ली के हेड ऑफिस पे बिल आता है, तो इन दैट केस अगर मान लीजिए 100 रुपए का रेंट का बिल आया और 18 रुपए उसमें टैक्स का कंपोनेंट है, तो पूरा 18 रुपए ना दिल्ली को पर्टेन करता है ना हरियाणा को पर्टेन करता है, बल्कि महाराष्ट्र को सोलली पर्टेन करता है। तो मैं महाराष्ट्र को उसका आईएसडी की तरह से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अमेंडमेंट जो है सेक्शन 20 में भी आई है, सेक्शन 2 में भी आई है आईएसडी की डेफिनेशन में, जिसकी वजह से मैंडेटरी हो गया है। रूल 39 में भी आई है, प्रोसीजर को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया है। और नॉन कंप्लायंस अगर आप करते हैं तो इससे दो नुकसान होंगे। पहला, आपको जिस ब्रांच का क्रेडिट नहीं है अगर उस ब्रांच पे वो अक्रू हो गया है और उसने आईएसडी की तरह से ट्रांसफर नहीं करा दूसरे को, तो उस केस में वहां पे वो क्रेडिट डिनाई करा जा सकता है सरकार द्वारा। और दूसरा, आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है विच इज 10,000 और द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और पास्ड ऑन विच एवर इज हायर एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। सेकंड चेंज जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है वो होटल इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। बड़ा वेलकमिंग अमेंडमेंट है। अभी तक ये होटल इंडस्ट्री पे नहीं है, आई शुड से इट इज फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, दो होटल इज अ पार्ट ऑफ दैट।
So all those restaurants who are situated which are situated in a hotel accommodation premises, मतलब जो होटल का पार्ट है, जैसे आप देखते हैं होटल की लॉबी में रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफेज होते हैं, उन सबके पास आज एक मैंडेटरी ऑप्शन है कि अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में फॉल करता है होटल, तो उनको 5%, तो उनको 18% विद आईटीसी दे हैव टू पे द टैक्सेस। मतलब वो 18% में जो है उनको टैक्स पे करना होता है रेस्टोरेंट वाले को, और इनपुट टैक्स क्रेडिट वो जो है ले सकता है। लेकिन अगर मैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हूं, मतलब अगर मेरा होटल स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में करंट सिनेरियो में मेरा जो 31 मार्च तक अगर मैं बात करूं, तो रेस्टोरेंट को मैंडेटरी है कि वो 5% जीएसटी पे करेगा और आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए होटल एसोसिएशंस, रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशंस का कहना था कि आप रेस्टोरों को ऑप्शन दीजिए कि मैं 5% या 18%, जैसे जीटीए के पास ऑप्शन है कि विद आईटीसी विदाउट आईटीसी, ऐसे आप ऑप्शन दीजिए कि जो रेस्टोरेंट्स 18% विद आईटीसी में जाना चाहते हैं वो 18% विद आईटीसी में जाए, और जो 5% विदाउट आईटीसी में जाना चाहते हैं वो 5% विदाउट पानी दियो। वो विदाउट आईटीसी में जाए। तो अब जो है लॉ अमेंड हुआ है जिसमें ये ऑप्शन दिया गया है। अमेंडमेंट की हम बात करें, नोटिफिकेशन 5/2025 से अमेंडमेंट आई है। डिक्लेयर टैरिफ की डेफिनेशन ओमिट हो गई है और अकोमोडेशन वैल्यू के हिसाब से जीएसटी अब जो है लगेगा। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे क्या हुआ है। जो करंट लॉ है 31 मार्च 2025 तक का, उसकी स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस की डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी ऐसा प्रीमाइसिस जहां पे होटल अकोमोडेशन है, जहां पे होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब होटल का जो पार्ट है, और जहां पे डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपये पर यूनिट पर डे का है किसी भी दौरान, मतलब पूरे साल में कभी भी अगर उसका डिक्लेयर टैरिफ 7,500 रुपये पर यूनिट पर डे का है, तो दैट होटल tantamounts टू स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। डिक्लेयर टैरिफ की डेफिनेशन दी गई है जहां पे चार्जेस फॉर ऑल एमिनिटीज इंक्लूडिंग सो एंड सो बट विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट, जो है अगर वो 7,500 को क्रॉस करता है डिक्लेयर टैरिफ, तो मेरा जो है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। लेकिन फ्यूचर लॉ में इन्होंने डिक्लेयर टैरिफ की डेफिनेशन ही खत्म कर दी है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, एक सिंगल कंसेप्ट था कि पूरे साल में अगर आपने डिक्लेयर किया 7,500, चाहे आप जो मर्जी चार्ज करो, अगर आपने डिक्लेयर किया 7,500 तो आप स्पेसिफाइड में हो, नहीं किया तो नहीं हो। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि सर्ज प्राइसिंग होती है, डायनामिक प्राइसिंग होती है, फेस्टिवल सीजन में होटल्स महंगे होते हैं, पीक सीजन में होटल्स महंगे होते हैं, लेकिन अदर देन पीक सीजन, अदर देन फेस्टिवल सीजन, अदर देन लॉन्ग वीकेंड्स, वीकडेज पे होटल जो है सस्ते होते हैं। तो उन्होंने एक्चुअल प्राइसिंग पे जो है ले आए हैं, डिक्लेयर टैरिफ की डेफिनेशन डिलीट कर दी है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के 3 टुकड़े कर दिए हैं। पहला टुकड़ा जिसमें पूरे पिछले किसी पूरे साल में किसी भी दिन किसी भी सिंगल यूनिट पे अगर 7,500 रुपये पर यूनिट पर डे का चार्ज कर लिया है होटल ने, तो उस केस में वो प्रीमाइस जो है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा एज पर क्लॉज ए। तो अब क्या किया सर, पहले था डिक्लेयर टैरिफ, अब है एक्चुअल टैरिफ। तो अगर पिछले पूरे साल में कभी भी 7,500 रुपये से ज्यादा चार्ज कर लिया है या 7,500 रुपये चार्ज कर लिए हैं, तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा, और मेरा जो है मैंडेटरी रेट जो है वो 18% विद आईटीसी मेरे को लगाना होगा रेस्टोरेंट्स को। लेकिन साथ साथ दो और ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, कोई रेस्टोरेंट एक एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है, किसी होटल का पार्ट है, जिस होटल ने पिछले साल में 7,500 रुपये नहीं चार्ज किए, मतलब उसका एक्चुअल टैरिफ 7,500 से कम रहा है पर यूनिट पर डे का, अगर उस रेस्टोरेंट वाले को भी ये करना है कि मैं ऑप्शन में जाना चाहता हूँ 18% विद आईटीसी, तो इन दैट केस वो एक डेक्लरेशन अनेक्शर 8 में फाइल कर सकता है 31 मार्च 2025 तक। मतलब किसी भी साल के 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में वो एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है जिसमें वो अपने प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस घोषित करेगा खुद से ही, और वो कहेगा कि अब पूरे साल, मतलब अगले पूरे साल, मैं बीच में चेंज नहीं कर सकता हूँ, अगले पूरे साल मैं जो है 18% टैक्स पे करूंगा और आईटीसी अवेल करूंगा। तीसरा क्लॉज क्या कहता है, अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन मैंने लिया है, तो विद इन 15 डेज आई हैव द ऑप्शन कि मैं अपने आप को, अपने प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस अनेक्शर 8 में डिक्लेरेशन फाइल करके 15 दिन के अंदर अंदर आई कैन डिक्लेयर माई प्रीमाइस टू बी स्पेसिफाइड प्रीमाइस, एंड आई हैव द ऑप्शन टू पे 18% जीएसटी along and take the input tax credit।
अब सर इस पूरे अमेंडमेंट से क्या समझ आया, हमें दो बातें समझ आई। पहला, डिक्लेयर टैरिफ से एक्चुअल टैरिफ कर दिया गया। तो पहले होटल जो डिक्लेयर करता था, जो एक्चुअल चार्ज करता था, उसमें फर्क होता था। डिक्लेयर्ड के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आती थी रेस्टोरेंट्स की, अब एक्चुअल के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आएगी। दूसरा, टैक्स रेट रेस्टोरेंट्स का सेम रहा है, लेकिन जो पहले ऑप्शन, पहले मैंडेटरी था कि अगर एक होटल स्पेसिफाइड, एक रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में फॉल करता है तो 18% जीएसटी इंक्लूड विद द ऑप्शन ऑफ अवेलिंग आईटीसी है, और अगर नहीं फॉल करता तो 5% विदाउट आईटीसी है। अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया है कि अगर 5% वाला 18 लेना चाहता है, मतलब वो आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहता है और 18 पे टैक्स पे करना चाहता है, तो अपने प्रीमाइस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस घोषित कर देगा और वो 18% टैक्स रेट पे करेगा और आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। रेस्ट ऑल द थिंग्स रिमेन सेम। Now this was the third topic that I have added, though I will take this topic at the very end. अगर मुझे लगता है litigation के topic के बाद टाइम बचेगा तो मैं इन दो जजमेंट्स को लास्ट में डिस्कस करूंगा। Now let us come to the other topic for the day, which is litigations under GST and how to draft reply to GST notices. So इस प्रेजेंटेशन में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये कुछ क्वेश्चनों के आपके जवाब आई विल ट्राई कि मैं अगले 40-45 मिनट्स में आई ट्राई कि मैं कवर करूं और इसका जवाब दूं। सबसे पहले तो नोटिस क्या होता है, नोटिस क्यों आता है, कौन नोटिस इशू करता है, किन प्रावधानों में ये नोटिस, किन प्रोविजंस में ये नोटिस इशू होते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग की क्या रेलेवेंस है और कैसे एक नोटिस का रिप्लाई जो है बनाया जाता है। जीएसटी लिटिगेशन का अगर मैं एक ओवरव्यू देना चाहूं तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो जीएसटी लिटिगेशन में फॉल करते हैं। एक चैप्टर है आपका असेसमेंट, जो कि चैप्टर 12 है, जिसमें 6 सेक्शंस जो है हमारे फॉल करते हैं 59 से 64। रूल्स हमारे 98, 99 और 100 है। अगला चैप्टर हमारा ऑडिट का है, जो कि चैप्टर 13 चैप्टर है, जिसमें 2 सेक्शन है 65 एंड 66। उसका अगला चैप्टर हमारा इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट है। जो भी हमारी सर्च होती है, एक एसएससी पे रेड पड़ती है डिपार्टमेंट द्वारा, वो सेक्शन 67 में रेड पड़ती है। और इस चैप्टर में 67 से 72 तक सेक्शंस हमारे कवर्ड है, चैप्टर 14 है। देन चैप्टर 15 आता है डिमांड्स एंड रिकवरी। तो असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के दौरान इन तीनों में जो भी डिस्क्रिपेंसी निकलती है वो डिमांड एंड रिकवरी में शोकॉज नोटिस इशू होता है, जो चैप्टर 15 के तहत इशू होता है, जिसमें सेक्शन 73 से 84 तक हमारे कवर्ड हैं। देन अपील्स एंड रिवीजन की अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर हमारा अपील्स एंड रिवीजन है, जो 18 चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 107 फर्स्ट अपील की बात करता है, सेक्शन 112 सेकंड अपील बिफोर दी ट्राइब्यूनल की बात करता है, और हमारे सेक्शंस 107 से 121 तक हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बिफोर डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस अंडर विच द डिपार्टमेंट कैन लिटिगेट और फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ द असेसी। जो फ्लो ऑफ लिटिगेशन है उसमें हमारे 4 तरीके की प्रोसीडिंग्स होती हैं एट द वेरी इंसेप्शन ऑफ लिटिगेशन। फर्स्ट इज असेसमेंट, जो हम चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज ऑडिट। थर्ड इज कोई भी रेगुलर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन आपका डिपार्टमेंट इशू करता है, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स आपकी डिपार्टमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ समन्स और इन एनी अदर मैनर। और अगर उन प्रोसीडिंग्स में, उन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ऑडिट प्रोसीडिंग्स में, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ऑफिसर को कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है और वो आपको बताता है और वो आपके जवाब से सहमत नहीं है, तो वो एक शोकॉज नोटिस सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में इशू कर सकता है, जिसका रिप्लाई आपको देना होता है। उसके बाद एक हियरिंग मिलती है और फाइनली एक एडजुडिकेटिंग ऑफ ऑर्डर, जो डीआरसी 7 में जिसकी समरी जाती है, जिसको सेंट्रल जीएसटी में ऑर्डर इन ओरिजिनल OIO कहा जाता है, वो पास होता है, जिसमें डिमांड या तो ड्रॉप कर दी जाती है शोकॉज नोटिस द्वारा, या कंफर्म कर दी जाती है, या पार्टली ड्रॉप और पार्टली कंफर्म कर दी जाती है। इसके अगेंस्ट या तो डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है या एसएससी अपील में जा सकता है। अगर डिमांड ड्रॉप हुई है तो डिपार्टमेंट अग्रीव्ड होकर अपील में जा सकता है कि डिमांड गलत ड्रॉप करी है हमारे ऑफिसर ने, और अगर डिमांड कंफर्म करी है तो एसएससी अपील में जा सकता है कि डिमांड गलत कंफर्म करी है ऑफिसर ने। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, और फाइनली आपका ऑर्डर इन अपील जो है OIA, अपीलेट ऑर्डर जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी द्वारा पास होता है। आप उसके अगेंस्ट जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, जिसमें अगेन हियरिंग मिलके फाइनल ऑर्डर पास होता है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का, जिसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और फाइनल आपका मैटर उसके बाद जो ऑर्डर पास होएगा वो आपका फाइनलिटी में आ जाता है। अब
सबसे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपने को समझना चाहिए सर। वी शुड नो, एवरीवन शुड नो कि किसके पास क्या मॉनेटरी लिमिट है टू रेज द डिमांड एंड टू एडजुडिकेट द एससीएन। सो मैंने जैसा इस फ्लो ऑफ लिटिगेशन में समझाया है कि एक शोकॉज नोटिस इशू होता है और उसका शोकॉज नोटिस को मैं एससीएन बोलूंगा और उसका ऑर्डर पास होता है एडजुडिकेशन ऑर्डर। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शोकॉज नोटिस इशू करना और ऑर्डर पास करने की मॉनेटरी लिमिट किसके पास कितने की है। तो अगर मैं इस स्लाइड से पहले डिस्कस करूं तो सेंट्रल जीएसटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो पैन इंडिया सेम रहती है, स्टेट जीएसटी में हर किसी के पास पावर अलग अलग है। सेंट्रल जीएसटी में जो लोएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है वो होता है इंस्पेक्टर, उसके ऊपर आता है सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर आता है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पैरेलल आता है डेप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर आता है एडिशनल कमिश्नर और उसके पैरेलल आता है ज्वाइंट कमिश्नर, और इनके ऊपर आता है कमिश्नर, और कमिश्नर के ऊपर आता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के ऊपर आता है हुड, जो कि हमें जिसे सीबीआईसी बोलते हैं। तो अगर आपकी डिमांड 20 लाख या 20 लाख से कम की है तो उसको ऑर्डर पास करने की पावर सुपरिटेंडेंट के पास है। अगर आपकी डिमांड 20 लाख से 2 करोड़ रुपए की है तो उसको ऑर्डर पास करने की डिमांड डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर की, और अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है। अब अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर सुपरिटेंडेंट या डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ने पास किया है तो उसके अगेंस्ट आपकी अपील लाई करेगी ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर अपील्स के पास। और अगर आपका एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो आपकी अपील लाई करेगी कमिश्नर अपील्स के पास, और इन दोनों अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आपकी सेकंड अपील लाई करेगी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, जो कि अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ discussing this particular slide. One is, if we are filing a reply to any show cause notice, we must know कि whether जो ये show cause notice का order जिसके पास पास करने की पावर है, क्या एज पर द लॉ ही इज एंटाइटल्ड टू पास द ऑर्डर। जैसे हमारे पास एक केस आया था जहां पे जिसने ऑर्डर पास किया उसके पास एज पर दीज मॉनेटरी लिमिट्स उसके पास पावर ही नहीं थी ऑर्डर पास करने की। तो इस स्लाइड से एक तो वो चीज समझ आती है कि किसके पास पावर है ऑर्डर पास करने की। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, किसके पास पावर है, किसके पास वो अपील लाया करेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारा ऑर्डर पास किया है फला फला अथॉरिटी ने, अब मेरी अपील कहाँ जाएगी। तो अगर हम सेंट्रल जीएसटी की बात करें तो इस एक सिंगल चार्ट से आपको समझ आता है कि आपकी अपील किसके पास जाएगी। थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक इंट्री केसी बताना चाहूंगा इसमें, जो सर्विस टैक्स लॉ या एक्साइज लॉ में प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे कर्व करी गई। लेट अस अज्यूम अमाउंट सेम थी, दो अमाउंट अलग अलग थी, लेकिन लेट अस अज्यूम फॉर द क्लैरिटी, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की अमाउंट सेम थी सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में भी। अगर मैं 20 लाख रुपए की बात करूं तो वो ऑर्डर पास करने की पावर थी डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जो कि अब जीएसटी में सुपरिटेंडेंट के पास है। अगर मैं 20 लाख से 2 करोड़ की बात करूं तो ये ऑर्डर पास करने की पावर थी एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास, जो आजकल डीसीएसी के पास है। और 2 करोड़ से ज्यादा की बात करूं तो पावर थी कमिश्नर के पास। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जो ये 20 लाख वाला है जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ने पास किया, और जो 20 लाख से 2 करोड़ वाला है जो एडीसी या जेसी ने पास किया, इन दोनों के अगेंस्ट तो अपील जाती थी कमिश्नर अपील्स के पास। लेकिन जो 2 करोड़ के ऊपर वाला ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया, क्योंकि कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स पैरेलल अथॉरिटी है, कमिश्नर अपील्स कमिश्नर से बड़ा रैंक का ऑफिसर नहीं है, तो वो कमिश्नर, मैं अपने कलीग की अपील नहीं सुन सकता बिकॉज आई हैव टू बी अ हायर फोरम। आई कैन नॉट बी अ पैरेलल फोरम एंड एट द सेम टाइम मैं अपने कमिश्नर के ऑर्डर में ही गलती निकालूंगा। तो इसलिए कमिश्नर की अपील सर्विस टैक्स और एक्साइज एरा में जाती थी डायरेक्टली कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो फर्स्ट अपील की अगर मैं बात करूं पुराने लॉ में तो वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में जाती थी, फर्स्ट अपील थी ही नहीं, एक तरह से एक अपील का लेवल जो है मेरा कट जाता था। तो इसीलिए लॉ में क्या हुआ, जीएसटी लॉ में कमिश्नर के पास से एडजुडिकेशन की पावर विड्रॉ कर ली, वो सुपरिटेंडेंट को दे दी, और एक दूसरी अथॉरिटी क्रिएट करी ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अपील्स की। तो अब आपका सुपरिटेंडेंट और डीसीएसी का ऑर्डर है तो वो जेसी एडीसी अपील के पास जाएगा, और एडीसी जेसी का ऑर्डर है तो वो कमिश्नर अपील के पास जाएगा, और सेकंड अपील आपकी ट्राइब्यूनल में जाएगी, जिससे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आपके फर्स्ट अपील मैंडेटरी है ही है, सेकंड अपील भी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट टॉपिक, दो इस टॉपिक में हमारे पास 6 सेक्शन है।
But given the paucity of time and the topic that I have and the fact that I need to complete it by 5:45, I'll be discussing only one topic, which is scrutiny of return, section 61. Because practically अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी केसेस सेक्शन 61 के ही आते हैं। 62, 63, 64 बहुत रेयर केसेस हमें देखने को मिलते हैं। सेक्शन 61 की बात करा जाए तो एज द नेम सजेस्ट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, तो सेक्शन 61 का स्कोप ये है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसकी स्क्रूटनी कर सकता है टू वेरीफाई कि वो रिटर्न सही है या नहीं है। मतलब बेसिकली जो मिसमैचेस या रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस होते हैं इन द रिटर्न दैट आई हैव फाइल्ड विद द जीएसटी ऑफिस, उनको वेरीफाई करके उसमें डिस्क्रिपेंसी निकालने की पावर सेक्शन 61 में ऑफिसर के पास है। अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो फॉर्म ASMT 10 में आपको जो है ऑफिसर बता सकता है कि ये आपकी डिस्क्रिपेंसी है और इसके तहत इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट और इतना पेनल्टी आपका बनता है। इसका जवाब आप ASMT 11 में दे सकते हैं या फिर आप इसको एक्सेप्ट करके पे कर सकते हैं। अगेन उसका जवाब भी आपको ASMT 11 में ही देना होगा। इसका टाइम लिमिट 30 दिन का है, लेकिन आप फर्दर एक्सटेंशन मांग सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर से टू फाइल द रिप्लाई। अगर आपका एक्सप्लेनेशन ऑफिसर को ठीक लगता है तो वो ASMT 12 में एक्सेप्टेंस का ऑर्डर पास करेगा, जिसके तहत आपका ASMT 10 में जो भी डिस्क्रिपेंसी बताई गई थी वो क्लोज्ड मानी जाएंगी। मतलब आपका केस कंक्लूड हो जाएगा बिना कोई शोकॉज नोटिस इशू किए। अगर आपने रिप्लाई नहीं करा या आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा या आपने एक्सेप्ट कर ली डिमांड और पे नहीं करा, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो सेक्शन 65, 66, 67, 73 या 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। 65, 68 में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपके अगेंस्ट ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है कि अब मैं आपको पूरा बैठ के ऑडिट करूंगा, सारा चीज वेरीफाई करूंगा। 67 में उसके पास पावर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, मतलब वो आपके प्रीमाइस में आके आपके ऊपर रेड कंडक्ट कर सकता है। और 73, 74 में डायरेक्टली वो शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है। जनरली अगर आप नहीं जवाब देते हैं तो वो शोकॉज नोटिस डायरेक्टली 73, 74 में इशू कर देते हैं। प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 61 के लिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के लिए सुपरिटेंडेंट होता है। सुपरिटेंडेंट के पास पावर होती है कि वो आपका स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स कर सकता है। अब एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कंसेप्ट होता है जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में तो पावर नहीं है लेकिन दूसरे सेक्शंस में पावर है, जो कि अगर हम समझे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने असेसी को कोई नोटिस जारी किया और असेसी उसका जवाब नहीं दे रहा है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। मतलब based on the documents that the proper officer has or the information proper officer has, प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर कि उसके बेसिस पे वो अपनी मर्जी के हिसाब से आपकी डिमांड कैलकुलेट करके आपको नोटिस जारी कर सकता है। अब लेकिन इसके वजह से बहुत बार ऐसा हुआ जब प्रॉपर ऑफिसर्स ने अपनी पावर का मिसयूज किया। फॉर एग्जांपल, आपके पिछले साल की डिमांड टैक्स पेमेंट थी 5 लाख रुपए और इस साल की उसने, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, इसके एवज में उसने 5 लाख रुपए की डिमांड को लेटर सपोज 10 लाख रुपए की बना दिया, ये बोलते हुए कि आपका बिजनेस 100% से ग्रो करा है इस साल, लेकिन उसका कोई लीगल बेसिस तो है नहीं। तो उस केस में ऐसा बहुत हमने केसेस देखे जहां पे हाई कोर्ट गया वो असेसी और उन्होंने बोला कि सर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मेरी गलत लगाई गई है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ऑफिसर ने विंडिक्टिव होके रिवेंजफुल मोड में, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे रहा था इसलिए गुस्से में आके उन्होंने अनाप शनाप वैल्यू कैलकुलेट करी और जो है मेरी डिमांड बनाई है जिसका कोई बेसिस नहीं है, इसलिए मेरी डिमांड को सेट असाइड किया जाए। तो इसके चलते मैं एक इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेट अस सपोज मिस्टर ए हैं जिनकी टर्नओवर हर महीने 5 से 10% जो है इंक्रीज कर रही है लास्ट 1 साल से, और डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट कंडक्ट किया जीएसटी ना भर रिटर्न ना भरने की वजह से अगस्त 2019 का, जिसमें एक केस है उसने अगस्त 2019 की टर्नओवर को जुलाई 2019 की टर्नओवर से 100% इंक्रीज माना, और सेकंड एग्जांपल है जहां पे उसने जुलाई 19 की टर्नओवर से 10% ही इंक्रीज माना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर नंबर 2, केस नंबर 2। बिकॉज एक जो ट्रेंड एनालिसिस है वो दिखा रहा है कि उसकी टर्नओवर हर साल 5 से 10% ही इंक्रीज कर रही है। तो प्रॉपर ऑफिसर को 100% टर्नओवर इंक्रीज करके डिमांड नहीं निकालनी चाहिए, उसको मैक्सिमम 10% के हिसाब से डिमांड निकाल देनी चाहिए। 100% डिमांड निकालना गलत है, आर्बिट्रेरी है एंड इट इज लायबल टू बी सेट असाइड।
ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे 300-400% जो है डिमांड ऑफिसर ने निकाली है। एक जजमेंट है अपीलेट अथॉरिटी की, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की जजमेंट है ओम साइन प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, जहां पे 150% का हाइक जो है डिपार्टमेंट ने लगाया और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी। जीएसटी की ही जजमेंट है, जिसमें ये अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया कि बेस्ट जजमेंट शुड बी बेस्ड और टेक ऑन टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल और गैदर्ड बाय द अथॉरिटी। The order, if it does not speak about any material collected by the assessing authority, then it is a wrong. The best judgment that has been invoked by the authority is wrong, because without any material you cannot invoke the best judgment assessment. It is not a guesswork. ये एक तुक्काबाजी नहीं है कि आपका जो मन में आया आपने वो अमाउंट उठा के मेरी डिमांड बना दी। इट शुड बी बेस्ड ऑन सम क्रेडिबल एविडेंस। उसके बाद ये रघुवर मंडल की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बोला गया है कि बेस्ट जजमेंट एक एस्टिमेट है, एक गेस वर्क है, लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम एविडेंस और मटेरियल, एंड इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपली अ सस्पिशन कि मेरे को लगता है इतनी डिमांड होगी इसलिए मैंने बना दी। गोल्डन मैश इंडस्ट्रीज की जजमेंट है तेलंगाना हाई कोर्ट की, जिसमें 3 गुना जो है उसकी लाइबिलिटी निकाल दी गई, ये बोलते हुए कि इसकी 3 गुना टर्नओवर जो है बढ़ गई है, उसको सेट असाइड किया गया। तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स जो हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट से निकाले। पहला, एस्टिमेट जो है वो किसी एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए, इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एन अजम्पशन। सेकेंडली, असेसिंग अथॉरिटी को जो है डिसऑनेस्टली या विंडिक्टिवली बिहेव नहीं करना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर के पास मटेरियल होना चाहिए सारा, इट शुड नॉट बी फैंसीफुल एंड आर्बिट्रेरी, इट शुड हैव अ रीजनेबल बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल है जो कहता है 10% टर्नओवर इंक्रीज हो रही है और आप 100% के हिसाब से बेस्ट जजमेंट लगा रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत बार देखेंगे बेस्ट जजमेंट लगाई होती है, वो बताता भी नहीं है कि कैसे लगाई है। तो जो कंप्यूटेशन का बेसिस है वो ऑर्डर में प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। सो कमिंग फॉरवर्ड, ऑडिट के चैप्टर की बात करते हैं। मैं बहुत ब्रीफ में जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूं। ऑडिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दी गई है, जिसमें एग्जामिनेशन की बात करी गई है, आपके रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का क्या चेक करने के लिए, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर करी है सरकार को, जो टैक्सेस आपने पे करे हैं, जो रिफंड आपने क्लेम किया है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है, टू चेक कि क्या आपकी और फर्दर आपकी कंप्लायंस आपने की है नहीं किया। तो अगर ऑडिट की मैं बात करूं तो ऑडिट का स्कोप क्या है। आज अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास आ रहा है तो क्या चीजें चेक कर रहा है। वो पहली चीज चेक कर रहा है आपने टर्नओवर सही डिक्लेयर किया नहीं किया, सेकंड आपने टैक्सेस पे किया नहीं किया, थर्ड आपने रिफंड प्रॉपरली लिया है नहीं लिया, आपने एक्स्ट्रा रिफंड गलती से ज्यादा रिफंड तो नहीं ले लिया, और चौथा आपने इनपुट टैक्स रेट सही से लिया नहीं लिया, और पांचवा आपने जो कंप्लायंसेस करने थे जीएसटी लॉ में, एग्जांपल आपने कोई रिटर्न भरनी थी वो आपने भरी नहीं भरी, या जो कंप्लायंसेस आपने करने थे अदर देन रिटर्न वो आपने जीएसटी लॉ में करे हैं या नहीं करे हैं। ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे किया जा सकता है। प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइंड है ऐसी जगह जहां पे आपका आपका जहां से आपका बिजनेस होता है, वेयर हाउस या गोडाउन, या ऐसी जगह जहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, या जहां से आपका बिजनेस एजेंट के थ्रू कंडक्ट होता है, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में कैलकुलेट होता है। और इन चारों जगह पे ऑफिसर के पास पावर है कि वो आके ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ऑडिट की पावर ऑथराइजेशन कमिश्नर से मिलती है। डेस्क रिव्यू भी हो सकता है और रजिस्टर्ड पर्सन के एड्रेस पे भी हो सकता है, और अगर ऑडिट में कुछ गलती निकलती है तो सेक्शन 73-74 में जाया जाता है, जिसके तहत आपका 5 साल का मैक्सिमम ऑडिट किया जा सकता है। एडीटी 1 में आपके पास नोटिस आता है, एटलीस्ट 15 दिन का आपको समय दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स फर्निश कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, टर्नओवर एग्जम्पशन सही ली नहीं ली, रेट ऑफ टैक्स सही लगाया नहीं लगाया, आईटीसी सही लिया नहीं लिया, और रिफंड सही लिया नहीं लिया, ये सारी चीजें आपकी वेरीफाई की जाती हैं। 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंक्लूड करना होता है। अगर ऑडिट की कंक्लूजन की रिपोर्ट एडीटी 02 में जाती है, अगर ऑडिट में कोई फाइंडिंग नहीं निकली, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं निकली, तो ऑडिट कंक्लूड हो गया। अगर फाइंडिंग निकली, मतलब कोई नॉन कंप्लायंस निकली और एसएससी ने मान लिया और जमा करा दिया, तो भी ऑडिट कंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर कोई नॉन कंप्लायंस निकली और आपने नहीं माना, आप उसको कंटेस्ट करना चाहते हो, तो शोकोज नोटिस सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में इशू कर दिया जाएगा। एडीटी 2 का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपको ऑडिट रिपोर्ट सरकार डिपार्टमेंट देता है। स्पेशल ऑडिट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सेक्शन 65 में ऑफिसर खुद से ऑडिट कंडक्ट करता है, लेकिन सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट आपका सीए या एक सीडब्ल्यूए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट से
डिपार्टमेंट करवाता है, मतलब डिपार्टमेंट एक सीए या सीडब्ल्यूए को हायर करेगा अपने पास, और उसके बाद उसको बोलेगा कि आप फलाना पार्टी का जाके ऑडिट करिए और ऑडिट रिपोर्ट बना के मुझे दीजिए, जिसमें जो भी कमियां होंगी उसके बेसिस पे मैं उस असेसी के अगेंस्ट प्रोसीड करूंगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हरियाणा स्टेट जीएसटी ने भी एक टेंडर निकाला था एम्पेनलमेंट ऑफ ऑडिटर्स का, जिसमें सीए और सीएमए को इनवाइट किया गया था कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए कि आप क्या स्पेशल ऑडिटर बनना चाहेंगे। तो जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा उनके उनको स्टेट जीएसटी द्वारा, हरियाणा द्वारा ऑडिट अलॉट होंगे, और उनके पास पावर होगी कि वो जाके टैक्स पेयर्स को ऑडिट कर सकते हैं और आके डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि ये नॉन कंप्लायंसेस हमने नोट किया और आप इसकी डिमांड असेसी से कर सकते हैं। दैट इज ऑल दैट इज देयर इन दिस सेक्शन 66। डिमांड्स एंड रिकवरी के चैप्टर पे आते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया असेसमेंट, अभी तक हमने डिस्कस किया ऑडिट्स। अगर कोई भी असेसमेंट, कोई भी ऑडिट, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पता चलता है कि कोई नॉन कंप्लायंस है और असेसी पे नहीं करता है, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में शोकॉज नोटिस असेसी को इशू कर सकता है। सेक्शन 73 जैसा मैंने आपको बताया बोनाफाइड का केस है, और सेक्शन 74 मेलाफाइड का केस है। सेक्शन 75 में कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को पर्टेन करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का डिफरेंस। अगर आपके पास कोई टैक्स नॉन पेमेंट निकलती है डिपार्टमेंट द्वारा, या टैक्स शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब हुआ मैंने कोई फलाना सर्विस पर टैक्स पे करना था, लेट अस सपोज मैं एक सीए की सर्विस रेंडर कर रहा हूं और मेरे को उस पर 18% जीएसटी पे करना था, मैंने नहीं पे किया, दैट इज टैक्स नॉट पेड। दूसरा केस है मैंने सीए की सर्विस पर 18% टैक्स पे करना था लेकिन मैंने 12% टैक्स पे किया, तो 6% जो मैंने शॉर्ट पे किया दैट इज टैक्स शॉर्ट पेड। थर्ड केस इज मैंने रिफंड अप्लाई किया सरकार को, सरकार ने मुझे दे दिया लेकिन वो रिफंड मेरा बनता नहीं था, तो रिफंड इरोनियसली मुझे रिफंड अगर कुछ टैक्स का हो गया है, तो दैट इज द थर्ड केस। एंड द फोर्थ केस इज आईटीसी मैंने रॉन्गली अवेल या रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया है। तो इन चारों केसेस में शोकॉज नोटिस सरकार इशू कर सकती है। अगर ये शोकॉज नोटिस, ये चारों इश्यूज मेरे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस की वजह से है, तो इन दैट केस मेरा सेक्शन 74 लगेगा जिसमें पेनल्टी 100% होती है। और अगर ये नहीं है ये इंग्रेडिएंट्स, तो सेक्शन 73 लगेगा जिसमें पेनल्टी मेरी 10% होती है। डिफरेंसेस की बात करें हम सेक्शन 73 74 में, तो जो ऑर्डर पास करने की टाइमलाइन है 73 में वो 3 साल है, जो सेक्शन 74 में ऑर्डर पास करने की टाइमलाइन है वो 5 साल है। शोकॉज नोटिस, क्योंकि ऑर्डर से पहले शोकॉज नोटिस इशू करना होता है, तो सेक्शन 73 में जो भी ऑर्डर की टाइम लिमिट है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले, मतलब ऐसे तो आप 1 साल पहले भी कर सकते हो, लेकिन 3 महीना कम से कम का गैप होना चाहिए, तो 3 महीने पहले आपके ऊपर शोकॉज नोटिस इशू हो सकता है, लेकिन 74 में 6 महीना पहले इशू होना चाहिए शोकॉज नोटिस। तो अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं तो 73 में 2 साल 9 महीने बाद, और 74 में 4 साल 6 महीने बाद एससीएन इशू हो सकता है, और 73 में 3 साल में ऑर्डर पास होना है, 74 में 5 साल में ऑर्डर पास होना है। अब जो ये मैं लिमिट्स बता रहा हूँ, 2 साल 9 महीने, 3 साल, 4.5 साल, 5 साल, ये कब से कैलकुलेट होगी? तो अगर आपका टैक्स या आईटीसी का इशू है, तो जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होगी, मतलब जो जीएसटीआर 990 की ड्यू डेट होगी, उससे ये 2 साल 9 महीने, 3 साल, 4.5 साल और 5 साल कैलकुलेट होंगे। और अगर रिफंड का केस है, तो जिस दिन रिफंड ग्रांट हुआ है उस दिन से ये 3 साल और 5 साल कैलकुलेट होंगे। सेक्शन 73 में आप पे जो पेनल्टी लगाई जाती है वो 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट की लगाई जाती है, 74 में 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट की लगाई जाती है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड पेनल्टी, ऑटोमेटिक रिड्यूस्ड पेनल्टी ऑल्सो, कि अगर आप शोकॉज नोटिस से पहले टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा देते हैं, तो सेक्शन 73 में 0% पेनल्टी लगेगी, लेकिन सेक्शन 74 में आपको 15% पेनल्टी भी जमा करानी पड़ेगी शोकॉज नोटिस से पहले पहले, और अगर आप करा देंगे तो आपकी पेनल्टी 15% ही रह जाएगी, आपकी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। अगर आप शोकॉज नोटिस आने के 30 दिन में जमा कराते हैं, तो सेक्शन 73 में आपकी पेनल्टी 0% रह जाएगी, लेकिन 74 में आपको 25% पेनल्टी भी जमा करानी पड़ेगी, मतलब टैक्स, इंटरेस्ट एंड 25% पेनल्टी अगर आप 30 दिन में जमा कराए थे तो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी 100% की पेनल्टी 25% की रह जाएगी। और अगर आप ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराते हैं, तो 73 में तो आपकी पेनल्टी पूरी लगेगी, लेकिन 74 में आपकी पेनल्टी 50% रह जाएगी और आपको 50% ही जमा कराने पड़ेंगे।
73 74 के कुछ कॉमन रूल्स हैं। सप्रेशन की डेफिनेशन एक तो दी गई है कि अगर आपको रिटर्न में कुछ डिक्लेयर करना था या किसी डॉक्यूमेंट जो भी आप इस लॉ में फर्निश कर रहे हैं टू दी प्रॉपर ऑफिसर, आपको कुछ फर्निश करना था, वो आपने नहीं करा, तो दैट अमाउंट्स टू सप्रेशन। अगर आपका सेक्शन 74 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर आपका सेक्शन 74 का शोकॉज नोटिस इशू हुआ और आपने उसका जवाब फाइल किया और आपने बोला सर मेरा सेक्शन 74 का केस ही नहीं बनता क्योंकि ये जो गलती मुझसे हुई है ये एक जेन्युइन एक बोनाफाइड एरर है, और ऑफिसर इस बात को एडमिट कर लेता है, तो आपका केस ऑटोमेटिकली 74 से कन्वर्ट होकर 73 रह जाएगा। और अगर आपकी कोई डिमांड टाइम बार्ड होगी होगी क्योंकि 73 में आपकी 3 साल में हो सकती है, 74 में 5 साल में, तो अगर आपकी कोई डिमांड टाइम बार्ड हो जाएगी तो वो टाइम बार्ड हो जाएगी, बाकी बची हुई डिमांड ही आपकी सस्टेन करेगी। अदरवाइज आपकी पूरी डिमांड भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप 74 का केस लड़े और अगर आप जीत जाएं कि ये 74 नहीं लगता था, तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा ही शोकॉज नोटिस सेट असाइड हो जाए, पूरी डिमांड ही सेट असाइड हो जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना ही देना है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत। आप 3 एडजॉर्नमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं शोकॉज नोटिस आने के बाद। ऑर्डर जो पास होगा वो स्पीकिंग होगा। आपने देखा होगा जीएसटी आने के बाद इवन टुडे यू सी देयर आर मेनी जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय द हाई कोर्ट जहां पे ये बोला जाता है कि एक सिंगल लाइन का ऑर्डर इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर। तो स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट, उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, उसके पीछे डिटेल्ड रीजनिंग होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने एक आध लाइन में, 2 लाइन में आपने जो है ऑर्डर पास कर दिया। तो स्पीकिंग ऑर्डर जो है सेक्शन 75 सब सेक्शन 6 में भी लिखा हुआ है कि स्पीकिंग ऑर्डर आपको जो है पास करना है। वेरी वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका शोकॉज नोटिस में लेट सपोज डिमांड 100 रुपए की कंफर्म की है, ये बहुत बार हमें क्लाइंट से क्वेरी आती है कि अगर मेरी शोकॉज नोटिस में डिमांड 100 रुपए की कंफर्म हुई है और मैं जवाब दूं तो ऐसा तो नहीं है ये मेरी 500 रुपए की हो जाएगी ऑर्डर में? नहीं, आपका ऑर्डर 100 रुपए के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, वो 101 रुपए की भी डिमांड कंफर्म नहीं कर सकता। इट हैज टू बी विद इन द स्कोप ऑफ बाउंड्री ऑफ शोकॉज नोटिस। इसी का एक दूसरा पहलू है, लेट अस सपोज मेरी शोकॉज नोटिस में डिमांड कंफर्म हुई आईटीसी रिवर्सल की 2A वर्सेस 3B बोलते हुए, मैंने उसका जवाब दिया, डिपार्टमेंट ने उसको एडमिट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड कंफर्म करी ये बोलते हुए कि 2A 3B तो आपका सही है लेकिन 16/4 में आप फंस गए, मतलब आपने बियॉन्ड टाइम लिमिट वो क्रेडिट लिया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर आपने शोकॉज नोटिस में एक एलिगेशन लगाई है तो आप इसी एलिगेशन के दायरे में रह के ही डिमांड कंफर्म कर सकते हैं, आप कोई और एलिगेशन पे डिमांड कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर ऑर्डर टाइमली पास नहीं हुआ तो आपका एससीएन ऑटोमेटिकली सेट असाइड हो जाएगा। अब एक नया प्रोविजन आया है साहब सेक्शन 74A का। तो अभी तक जो शोकॉज नोटिस इशू होने थे फॉर द डिमांड्स अप टू 1 अप्रैल 2024, तो 31 मार्च 2024, पिछले साल तक की जितनी भी डिमांड टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, टैक्स इरोनियसली रिफंडेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड की हैं, वो 73 या 74 में होंगी। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से एक नया प्रावधान आया 74A। 1 अप्रैल 2024 से 73 74 खत्म हो गया। इसका मतलब जो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद की डिमांड होंगी सिर्फ उन पे 74A लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल 24 के बाद जो शोकॉज नोटिस इशू होगा वो 74A में होगा, नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 24 से पहले की जो भी डिमांड होगी, मतलब 23-24 के पीरियड की भी अगर कोई डिमांड निकल रही है और वो आज भी निकल रही है तो वो 73 या 74 में निकलेगी। लेकिन अगर 1 अप्रैल 24 के बाद की कोई डिमांड निकल रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की कोई डिमांड निकल रही है, तो वो 74A में निकाली जाएगी। 74A में आपका जो पेनल्टीज है दैट इज सेम। अगर फ्रॉडुलेंट है तो 100%, नॉन फ्रॉड है तो 10%, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो कॉमन रख दी गई है, चाहे फ्रॉड हो चाहे नॉन फ्रॉड हो। अगर आपका जो एससीएन है उसको पास करने की टाइम लिमिट अगेन वो सेम है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आपको शोकॉज नोटिस इशू करना है, सॉरी 42 महीने के अंदर अंदर आपको शोकॉज नोटिस इशू करना है, और ऑर्डर आपको 12 महीने के अंदर अंदर पास करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एससीएन। वहां क्या था, एनुअल रिटर्न से ऑर्डर की डेट थी या एससीएन की डेट से ऑर्डर की डेट है। तो एनुअल रिटर्न की डेट से एससीएन आपको 42 महीने के अंदर अंदर इशू करना है, मतलब आपके हो गए 3.5 साल, और 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना है जो कि 6 महीने और एक्सटेंड हो सकता है। तो इफेक्टिवली फ्रॉड नॉन फ्रॉड दोनों के केस में ही अब डिपार्टमेंट आपका 5 साल पे आ गया है कि 5 साल में ही आपको दोनों के शोकॉज नोटिस और ऑर्डर पास करने हैं। रिड्यूस पेनल्टी के प्रोविजन एग्जैक्टली आपके सेम है। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड है तो 73 74 की जरूरत नहीं है, कभी भी रिकवरी हो सकती है, और आपको जो है
100% पेनल्टी इसमें आपकी मैंडेटरी लगेगी ही लगेगी। अपील्स की मैं बात करूं, सेक्शन 107 में 3 महीने में आपको अपील करनी होती है। ये अपील की हम बात करें जो 73 या 74 में ऑर्डर पास होगा उसके अगेंस्ट अपील। तो जो फर्स्ट अपील आपको करनी है वो सेक्शन 107 में 3 महीने के अंदर आपको अपील करनी है। और जो डिपार्टमेंट के पास अपील करने का 6 महीने का टाइम पीरियड है, आप मैक्सिमम 1 महीना लेट अपील कर सकते हैं। 4 महीने के बियॉन्ड अगर आप अपील करेंगे तो वो डिले करके कंडोन नहीं किया जाएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगी। हाई कोर्ट ही डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट ही उसको एंटरटेन कर सकता है, उसके बियॉन्ड कोई उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने 4 महीने में नहीं फाइल करी तो। 3 महीने नॉर्मल पीरियड, 1 महीना कॉन्डोनेबल पीरियड। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है, जो भी डिमांड आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको पूरा जमा कराना पड़ेगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का। और बाकी बची अमाउंट जो उसको आप डिस्प्यूट कर रहे हैं उसका आपको 10% जो है जमा कराना पड़ेगा, तभी आपकी अपील की सुनवाई होगी। ट्राइब्यूनल की मैं बात करूं, दो अभी बना नहीं है, लेकिन ट्राइब्यूनल की भी टाइम लिमिट अपील फाइल करने की एसएससी द्वारा वही सेम है, 3 महीना। 3 महीने में अपील आपकी ट्राइब्यूनल में आपको फाइल करनी है, जब भी ट्राइब्यूनल बन जाएगा उस दिन से। डिपार्टमेंट के पास अगेन 6 महीने का टाइम पीरियड है। कॉन्डोनेबल पीरियड यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं है। आप अगर 5 साल बाद भी अपील फाइल कर रहे हो और ट्राइब्यूनल को लगता है कि आपका जेन्युइन डिले था, तो ट्राइब्यूनल उसको जो है अलाउ कर सकता है। 45 दिन में क्रॉस ऑब्जेक्शन करने हैं, मतलब अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है और उसके अगेंस्ट आपको कोई सबमिशंस फाइल करने हैं तो आपके पास 45 दिन का समय है डिपार्टमेंट की अपील के अगेंस्ट क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट की बात की जाए तो वहां पे 10% था, यहाँ पे पहले 20% था, अब जो है वो घट के 10% रह गया है। और ये 10% इन एडिशन टू 10% जो आपने नीचे जमा कराए थे। तो फर्स्ट अपील पे आपने 10% जमा कराए, सेकंड अपील में फिर 10% जमा कराने। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। लेट अस सपोज मेरी टोटल डिमांड है 5 लाख रुपए की। मैंने फर्स्ट अपील में 2 लाख रुपए एडमिट किए, 3 लाख पे मैं अपील में गया, तो 2 लाख रुपए पूरे जमा कराने और 3 लाख का 10% मतलब 30 हजार। तो 2,30,000 रुपए आप जमा कराएंगे तभी आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। अब 2 लाख तो मैंने जमा करा दिया, 3 लाख के लिए मैं अपील में चला गया, 3 लाख भी अपील वाले ने डिसमिस कर दिया और कंफर्म कर दी डिमांड। अब मैं सेकंड अपील में जा रहा हूं, तो सेकंड अपील में फर्दर आपको 30,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, जो कि इन एडिशन टू 30,000 विच वॉज डिपॉजिटेड एट दी फर्स्ट अपीलेट लेवल है। तभी आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल में टोटल पेमेंट आपकी 2,30 नीचे हो गई और 30,000 ऊपर। तो टोटल पेमेंट टिल ट्राइब्यूनल आपकी 2,60,000 रुपए होनी चाहिए। ये एक डिफिकल्टी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आया हुआ है 3 दिसंबर 2019 का, जिसमें ये बोला गया था कि क्योंकि अभी ट्राइब्यूनल हम नहीं बना रहे हैं, तो जिस दिन हम आपको डेट नोटिफाई करेंगे उस दिन से 3 महीने में आप अपील फाइल कर सकते हैं। जो ये टाइम लिमिट है 112 सेक्शन में 3 महीने फ्रॉम दी अपीलेट ऑर्डर, वो नहीं मानी जाएगी। जिस दिन आपको हम बोलेंगे उस दिन से 3 महीने में आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर दी ट्राइब्यूनल। ये कुछ जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स की, जिनमें क्योंकि ट्राइब्यूनल नहीं बना और अगर अपील का ऑर्डर पास हो गया तो एसएससी कैन नॉट बी लेफ्ट रेमेडीलेस, ऐसी जजमेंट आई हैं। और उसके तहत ये वाली बात की गई है कि आपको हाई कोर्ट जो है एंटरटेन करेगा। अगर आपका कोई ऐसा केस है जहां पे अपील ने ऑर्डर पास कर दिया है और ट्राइब्यूनल नहीं बना है और एसएससी को कोई नुकसान हो रहा है ट्राइब्यूनल बनने की वेट करने तक का, तो उसमें हाई कोर्ट आपका एंटरटेन करेगा, केस को सुनवाई करेगा। अगर आप जो प्री डिपॉजिट जमा करा रहे हैं, मतलब जो आपने 10-10% ट्राइब्यूनल और फर्स्ट अपीलेट लेवल पे जमा कराया, उसका अगर आप केस कल को जीत जाते हैं तो आपको उसका पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। सेक्शन 115 में आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। उसका रिफंड जिस दिन पे किया से लेके जिस दिन रिफंड मिलेगा तब तक का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा सेक्शन 56 में। और 6% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाइड है। तो आपको रिफंड तो मिलेगा मिलेगा, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा जिस दिन जमा कराया है से लेके जिस दिन रिफंड मिलेगा उस दिन तक का। हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का, ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट की बात हो रही है, ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम लिमिट 180 दिन का है। ये कुछ फॉर्म्स हैं। अपीलेट अथॉरिटी में आप अपील फाइल करते हैं APL 01 में, डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है APL 03 में, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है APL 02 में और ऑर्डर पास होता है APL 04 में। तो APL 1, 2, 3, 4 चारों फॉर्म्स का रिलेवेंस बताया गया है। APL 5 में आप अपील फाइल करेंगे ट्राइब्यूनल में जब भी ट्राइब्यूनल बन जाएगा। डिपार्टमेंट अपील फाइल होगी APL 07 में। अगर आप कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट अपील के अगेंस्ट डालना चाहते हैं तो APL 06 में फाइल होंगे। और जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट है वो APL 02 में आपको ट्राइब्यूनल देगा। और हाई कोर्ट में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं, ये रिट पिटीशन की बात नहीं हो रही है, अपील की बात हो रही है, तो आप APL 08 में हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक,
देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 120, जहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अपील डिपार्टमेंट नहीं फाइल करेगा। उसकी मॉनेटरी लिमिट 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड करी गई है। अगर आपका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है जिसमें 20 लाख रुपए तक की ही डिमांड है, और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे ट्राइब्यूनल जाना है, मतलब ये हमें लगता है कि गलत डिमांड ड्रॉप हुई है एसएससी के फेवर में, ये डिमांड नहीं ड्रॉप होनी चाहिए थी और हमें ट्राइब्यूनल में अपील करनी है, तो उसके पास पावर नहीं है। 20 लाख से ऊपर है तो ही वो अपील कर सकता है, 20 लाख से नीचे अपील ने अगर गलत ऑर्डर भी पास कर दिया तो भी डिपार्टमेंट हैज टू मैंडेटरीली एक्सेप्ट दैट ऑर्डर, दो वो कोई प्रेसिडेंस नहीं बनेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है उसको ट्राइब्यूनल में अपील करने की। सिमिलरली अगर जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का 1 करोड़ का तक का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट डिपार्टमेंट नहीं जा सकता। एंड इन अ सिमिलर मैनर, हाई कोर्ट का 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट नहीं जा सकता। अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड है तो ही डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इन कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आपकी अपील लाई नहीं करती है। पहला, जो कमिश्नर आपका केस ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर करता है, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। कोई सीजर का अगर ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 67 में तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। कोई प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। और अगर कोई सेक्शन 80 जो कि टैक्स पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स का ऑर्डर पास हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। So with that, friends, we have concluded this long topic of litigations under GST, where we discussed, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द असेसमेंट्स, जहाँ पे हमने सेक्शन 61 की बात करी। सेकेंडली हम लोगों ने ऑडिट्स की बात करी जिसमें सेक्शन 65 66 की बात करी। थर्डली हमने डिमांड एंड रिकवरी में सेक्शन 73, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 की बात करी। लास्टली हमने अपील्स की बात करी जिसमें हमने सेक्शन 107 और 112, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एंड थर्ड अपील, मतलब हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल और फर्स्ट अपीलेट लेवल पे हमने डिस्कस किए कि क्या प्री डिपॉजिट के प्रोविजंस हैं, रिफंड कैसे मिलेगा प्री डिपॉजिट का, कौन से ऑर्डर्स नॉन अपीलेबल हैं, कितने टाइम लिमिट में अपील करनी होती है, और कौन से फॉर्म्स हैं जिनके अंडर मैं अपील जो है फाइल करता हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड to the last topic for the day, which I'll try to conclude in next 10 to 15 minutes or so. Let us understand first of all before discussing the reply topic, uh, कि क्या फॉर्म्स अभी तक हमने डिस्कस करे। सबसे पहले प्री एससीएन आता है डीआरसी 1A में, ये मैंडेटरी नहीं है, अब वॉलंटरी कर दिया गया है तो हम स्किप करते हैं। शोकोज नोटिस आता है डीआरसी 1 में, इसका स्टेटमेंट ऑफ डिमांड आता है डीआरसी 2 में। डीआरसी 1 के अगेंस्ट आप जो है अगर पेमेंट करते हैं और प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होती है तो डीआरसी 5 में होती है। डीआरसी 1 में आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो डीआरसी 6 में करते हैं, और ऑर्डर पास होता है डीआरसी 7 में। डीआरसी 7 की रेक्टिफिकेशन होती है डीआरसी 8 में, और डीआरसी 8 के अगेंस्ट, सॉरी, डीआरसी 7 के अगेंस्ट अगर आप अपील करते हैं, जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया, तो एपीएल 01 में आप अपील करते हैं और वो ऑर्डर पास होता है एपीएल 04 में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ ड्राफ्टिंग द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस और ड्राफ्टिंग ऑफ अपील। सो एज देयर इज अ पॉपुलर saying, a legal maxim, verba volant scripta manent, इसका मतलब यह है कि स्पोकन वर्ड्स फ्लाई अवे, रिटर्न वर्ड्स रिमेन। इसका देसी भाषा में अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब डिपार्टमेंट जाते हैं, हम हियरिंग करके आते हैं, तो डिपार्टमेंट उसके महीने या 2 महीने बाद ऑर्डर पास करता है और वो भूल चुका होता है कि आपने जो बात बोली क्या वो बात थी, क्योंकि एक दिन में 10-10 15-15 हियरिंग्स अटेंड रखी गई हैं। ऑर्डर पास हो रहा है 1 महीने बाद, तो 1 महीने पहले आप आके क्या बोल के गए थे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो किसी को भी याद नहीं रहता है। तो जो सबमिशन आपने राइटिंग में करे हैं, सिर्फ वही सबमिशंस की वैल्यू रहती है और उन्हीं सबमिशंस के बेसिस पे आपका जो है ऑर्डर पास होता है। दिस इज नॉट लाइक ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट, जहां पे, और कभी कभार ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट भी ऐसा करता है कि ऑर्डर रिजर्व करता है और 1 महीने बाद ऑर्डर पास करता है, 15 दिन बाद ऑर्डर पास करता है, और कभी कभी ऑन द स्पॉट पास होता है। तो जहां पे भी आपका ऑर्डर रिजर्व हो रहा है और बाद में पास हो रहा है, वहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी सबमिशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपके रिप्लाईज प्रॉपर नहीं है, तो आपका केस कभी भी आप नहीं जीत पाएंगे। आपका रिटर्न वर्ड्स, रिटर्न सबमिशंस ही जो है वही आपको केस जो है जिताएंगे। तो यही सारी बातें मैंने इस स्लाइड में लिखी कि आपकी इन डिटेल सारी सबमिशंस होती हैं। वर्बली तो आप 5 10 15 मिनट में, आधे घंटे में कितना लिमिटेड ही बोल पाएंगे, लेकिन
अदर देन दैट जो भी आपकी सबमिशन है वो सारी राइटिंग में होती है। एक इनकम्प्लीट रिप्लाई या अनसब्सटैंशिएटेड रिप्लाई आपको कभी मदद नहीं करेगा केस जीतने में। एक काउंसिल के एक केस लड़ने वाले के रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया बहुत जगह पे हियरिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, एक्चुअली में तो आपके रिप्लाई के बेसिस पे ही आपका केस फेवर या अगेंस्ट होता है। प्लस फ्यूचर लिटिगेशन, अगर आप रिप्लाई में सारी बातें नहीं डाल रहे हैं तो फ्यूचर में आप हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने ये वाली बात नीचे बोली थी और उसने नहीं सुनी। तो आपको फ्यूचर लिटिगेशन के लिए कवरेज करने के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है अपने रिप्लाई में सारी बातें डालें, जिससे आप फ्यूचर में बोल सके कि सर ये बात मैंने रखी थी डिपार्टमेंट के आगे, बट डिपार्टमेंट ने मेरी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी, मेरी इस बात को तवज्जो नहीं दी और मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिप्लाई बनाते हुए या अपील बनाते हुए आपको ध्यान रखने हैं। सबसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नोटिस या जो ऑर्डर आपका आया है उसको बहुत केयरफुली पढ़िए, उसका एक एक वर्ड आप पढ़िए। मैं देखता हूं बहुत बार ये कमी है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक्सपीरियंस से मैंने लिखे हुए हैं, ये कहीं पे भी आपको गूगल करने पे या किसी आर्टिकल में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ये सब एक्सपीरियंस से लिखे हुए हैं। तो आई हैव एक्सपीरियंसेस वेयर आई हैव सीन कि नोटिस में बात कुछ और बोली गई है, हमारे रिप्लाई में बात कुछ और कही गई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस में या ऑर्डर में जिसके अगेंस्ट आप रिप्लाई या अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपको एक एक चीज, आपको आधा एक घंटा आराम से पेंसिल लेके बैठना चाहिए और एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके यू नीड टू केयरफुली रीड कि वो आपका शोकॉज नोटिस या ऑर्डर क्या कह रहा है। When you are reading that notice or order against which a reply or appeal has to be drafted, you should carve out every point. You should carve out two types of points, three types of in fact. One are the facts जो undisputed है। आपका जो डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। जैसे एग्जांपल है, आपने रिटर्न सो एंड सो डेट को फाइल करी, आपने रिटर्न में सो एंड सो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी, सो दोज आर द फैक्ट्स, कार्व आउट दोज फैक्ट्स। सेकेंड आर द एलिगेशंस, कि उन फैक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट क्या एलिगेशन लगाई, कि आपके 2A 3B में मिसमैच था, या एग्जांपल है आप सीए की सर्विस दे रहे थे, आपने उस पर टैक्स पे नहीं करा, उस पर टैक्स 18% बनता है। तो आप सेकंड पॉइंट है, आप उसमें से एलिगेशंस को कव आउट कीजिए कि ये एलिगेशन मेरे अगेंस्ट लगाई गई है, उन एलिगेशन का मुझे जवाब देना है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरली कोई भी नहीं करता है, उस शोकॉज नोटिस या उस ऑर्डर में ही कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके फेवर की होंगी। जैसे मैंने एक रिप्लाई बनाया जिसमें डिपार्टमेंट कहता है आपका एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन शोकॉज नोटिस में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि आप ये 5 सर्विसेज दे रहे हैं, एक सर्विस को मैं मानता हूं एक्सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पांचों का ब्रेकअप नहीं था, एक पांचों की कंसोलिडेटेड वैल्यू थी, इसलिए मैं पांचों पे टैक्स बना रहा हूं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं वो एक पॉइंट को पकड़ूं, उसकी लाइन को पकड़ूं, क्योंकि जिस दिन मैं ये बाइफर्केशन दूंगा मेरी पहली डिमांड तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, मेरी बाकी 4 की लड़ाई रह जाएगी। पहली तो डिपार्टमेंट मान चुका है कि आपके फेवर का है। तो इसलिए जो थर्ड पार्ट है वो मेरे को एससीएन ये ऑर्डर में से निकालना है, वो ये है कि जो मेरे फेवर की बातें हैं जो डिपार्टमेंट ने खुद से एक्सेप्ट की या लिखी, वो मुझे कार्व आउट करनी है और वो मुझे अपने रिप्लाई में और अपील में कोट करनी है। बेस्ड ऑन द सेकंड पॉइंट इटसेल्फ यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को किस चीज के अगेंस्ट ड्राफ्टिंग करनी है, उस पर्टिकुलर इशू, उस पर्टिकुलर एलिगेशन, लेट अस सपोज 2A 3B का इशू है, कैंसिल डीलर का इशू है, या एग्जांपल है इंटरप्रिटेशनल इशू है कि फलाना सर्विस पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, या किस रेट ऑफ टैक्स पे लगेगा, या क्लासिफिकेशन का इशू है। तो उस पर्टिकुलर इशू के इर्द गिर्द जितनी भी रिसर्च है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, एक्ट है, रूल्स हैं, केस लॉज हैं, सब पढ़ लीजिए। सेकेंड स्टेप इज उसके इर्द गिर्द सारी रिसर्च आप जो है करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी आपके, क्योंकि आप बहुत बार देखते हैं 100 150 पेज के शोकॉज नोटिस ऑर्डर निकाले गए हैं, तो उसमें बहुत जगह पे बहुत सारी एम्बिग्विटीज होती है, बहुत क्लैरिफिकेशंस नहीं होती, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके बिजनेस को लिमिटेड ही समझा है। तो जो भी ऐसी एम्बिग्विटी है, जो आपको लगता है नोटिस में क्लैरिटीज नहीं है, एम्बिग्विटी है, वो अपने रिप्लाई से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने रिप्लाई को इतना सिंपल, इतना इजी रखिए। मैं देखता हूं बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं रिप्लाई को। अपने रिप्लाई को इतना सिंपल, इतना इजी रखिए कि एक लेमैन भी आपके रिप्लाई को समझ सकता है। ये मत सोचिए कि जो आपका रिप्लाई पढ़ रहा है वो एक टैक्स एक्सपर्ट है, नहीं। बिल्कुल बेसिक तरीके से एक लेमैन की तरह से अपने रिप्लाई को बनाइए, और कोशिश कीजिए अपने रिप्लाई को उस व्यक्ति से चेक कराइए जो व्यक्ति इस फील्ड का भी नहीं है।
जब वो रिप्लाई आपको पढ़ के बोलेगा कि हाँ मेरे को पूरा केस समझ आ गया, देन ओनली योर रिप्लाई इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आप आधी से ज्यादा लड़ाई तो जीत चुके हैं। फिर अपने रिप्लाई में जितने भी नेसेसरी प्रोविजंस हैं वो कोट कीजिए, अपने रिप्लाई को कंसाइज एंड टू द पॉइंट बनाइए, बट ऐसा भी मत कीजिए जैसा मैं गूगल व्हाट्सएप पे देखता हूँ, टेलीग्राम पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, एक एक दो दो पेज के रिप्लाई सर्कुलेट हो रहे हैं। नहीं सर, 2 पेज के रिप्लाई से आप केस नहीं जीतेंगे। अपने रिप्लाई को एक्सप्लेनेटरी बनाइए। स्टेट जीएसटी के केस में तो आप फिर भी हो सकता है 2 पेज के रिप्लाई पे केस जीत जाए, लेकिन सेंट्रल जीएसटी के जो अच्छे केसेस होते हैं, जो इंटरप्रिटेटिव इश्यूज होते हैं, कभी भी सर आप 2 पेज के रिप्लाई पे, 3 पेज के रिप्लाई पे केस नहीं जीतेंगे। अपने रिप्लाई को प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए, प्रोविजंस कोट कीजिए, केस लॉस कोट कीजिए। एक एक दो दो पेज के रिप्लाई मत बनाइए, एंड एट द सेम टाइम 150-150 पेज के रिप्लाई भी मत बनाइए। जहां पे लॉ की केस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिप्लाई ड्राफ्ट कीजिए। अननेसेसरी बातें मत रखिए, अननेसेसरी फैक्ट्स, अननेसेसरी सबमिशंस को स्किप कीजिए। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की सपोर्टिंग। बहुत बार होता है मैं अपने रिप्लाई में बातें बोलता रहता हूँ, सर मैंने 2A 3B का क्रेडिट एक्सेस लिया ही नहीं, लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। मैं जस्ट सपोर्टिंग से प्रूव तो कर पाता नहीं हूँ कि मैंने लिया नहीं। तो आईटीसी रजिस्टर से या रिटर्न्स के माध्यम से, अपने डॉक्यूमेंट्स को सीए सर्टिफिकेट के माध्यम से, अग्रीमेंट्स के माध्यम से अपने रिप्लाई को, अपनी सबमिशंस को एविडेंस करिए, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाइए। बिना उसके आप कभी भी केस नहीं जीतेंगे। आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस, मे बी हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स, जहां पे एक लाइन पे पूरी पूरी सबमिशन रिजेक्ट की गई है कि मैं पूरी सबमिशन एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं इसलिए आई एम कंस्ट्रेंड नॉट टू एक्सेप्ट देयर सबमिशन एंड कंफर्म द डिमांड। रिप्लाई आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रिप्लाई आपका आपके अपने दिमाग के हिसाब से बना है कि मेरे को लगता है मेरा रिप्लाई बढ़िया बना है, मैंने अपनी सारी बातें कवर कर ली। नहीं, अपने रिप्लाई को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखिए। अपने रिप्लाई में सारी बातें कवर कीजिए जो मैक्सिमम हो सकती है, और ऐसा रखिए कि कल को आप नहीं भी जा रहे हैं डिपार्टमेंट तो भी आपका रिप्लाई पढ़ने वाले को लगे मजा आ गया और ये केस तो फेवर में करने लायक है। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं रिप्लाई बनाने के। ऑल्टरनेट ग्राउंड्स लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं देखता हूँ मेरिट्स पे हम ग्राउंड लेके खत्म कर देते हैं। जैसे ऑल्टरनेट ग्राउंड है कि मुझे समरी नहीं मिली डीआरसी 1 में, समरी नहीं मिली डीआरसी 7 में, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे आपका केस कभी कभार ऐसे ही जीत जाता है। मेरिट्स पे जाता ही नहीं है, इन्हीं बातों पे केस जीत जाता है, टेक्निकल इन्फॉर्मिटीज पे। तो इसलिए ऑल्टरनेट ग्राउंड्स लीजिए। मेरिट्स पे जो ग्राउंड ले रहे हैं उसमें प्रोविजन, केस लॉ, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जजमेंट्स, साथ साथ क्या कहते हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लेजर्स, अग्रीमेंट्स, इनवॉइसेस, सीए सर्टिफिकेट, क्रेडिट रजिस्टर, इन सब शेप में आप सबमिट कीजिए। ड्राफ्ट का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ फ्लो प्रॉपर नहीं होता, पहले भी वही बात बोल रहा हूँ, नीचे भी वही बात बोल रहा हूँ, रिपीट किए जा रहा हूँ बातों को। पहले कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर वापस से वही बात बोलने लग गया। तो फ्लो शुड बी प्रॉपर। रिकंसिलिएशन सिंपल रखिए अगर आपके केस में है तो, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखिए। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया एक ही लाइन में कि आपकी रिकंसिलिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड एक्चुअली में जो रिकंसिलिएशन सबमिट हुई थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो रिकंसिलिएशंस को एज सिंपल एज पॉसिबल, एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज पॉसिबल रखिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने जैसे कहा लगाइए। लीगल मैक्सिम्स या डॉक्ट्राइन्स यूज कर सकते हैं आप, वो आपको बड़ा हेल्प करते हैं केस जीतने के लिए। अगर आपकी सबमिशंस बहुत लेंदी है, लेट अस सपोज कभी कभार कोई ग्राउंड ऐसा होता है जो 20-20 पेज का बन जाता है, तो आधे पेज में उस 20 पेज को सम अप कर दीजिए, जिससे इट विल वर्क एज अ रेडी रेफरेंस फॉर द ऑफिसर। जो भी एलिगेशंस है डिपार्टमेंट की उन सबको बुलेट्स में डालिए और हर बुलेट का जवाब दीजिए विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कुछ कॉमन ऑल्टरनेट ग्राउंड्स है। आई सपोज द टाइम डज नॉट अलाउ अस, तो मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा मैम आपके साथ। तो आप जो है सबके साथ शेयर कर दीजिए। ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ग्राउंड्स। आप इन ग्राउंड्स को एक बार देख सकते हैं। इन ग्राउंड्स को भी आप डालिएगा। आप ये ग्राउंड्स मैं देखता हूँ बहुत ड्राफ्ट्स में नहीं डलते हैं। मैंने इन ग्राउंड्स के साथ इनकी जजमेंट्स भी दी हैं, कि जैसे पर्टिकुलर क्लॉज आपने नहीं डाला, सिर्फ सेक्शन लिख दिया, 122 की पेनल्टी लगाऊंगा। 122 में 5 सब सेक्शन है, हर सब सेक्शन में 20-20 ऑफेंसेस हैं। आप बता ही नहीं रहे मैंने कौन सा ऑफेंस किया। तो ऐसी कुछ जजमेंट्स हैं जो फेवर में है, जिनमें बोला गया कि अगर आपने क्लॉज नहीं बताया तो आपका वो पेनल्टी ही वेग है, अनसस्टेनेबल है, सेट असाइड करना है। बहुत टाइम गैप है प्रोसीडिंग्स में, तो कुछ जजमेंट्स हैं जिनमें ये वाली बात की गई कि ये गलत है, इतना इतना प्रोसीडिंग्स में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। देन ये कुछ लीगल मैगजिम्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो टैक्स मैटर्स में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। आप इन सबको गूगल करके देखेंगे, आपको इजीली इनका मतलब समझ आ जाएगा, और आप ये एज फार एज पॉसिबल आप इनको यूज कीजिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।
I hope I've been able to convey many important areas of the GST law. And again, I would like to thank team Asha ji, Pooja ma'am, for giving me the opportunity to discuss these very important topics for the day. Now we can take the queries if there are any. थैंक यू सो मच अनमोल जी। एंड लिटरली काफी सारे टॉपिक्स को आपने इसमें कवर किया, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को आपने उठाया, एंड बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में आपने समझाया चीजों को। कुछ एक दो क्वेरीज हैं, उसको हम ले लें। जी मैम, मैं ही पढ़ के ले लेता हूँ मैम। ठीक है। एक तो आप ही की शायद क्वेरी है मैम। हाँ कुछ सबसे पहली। जी जी, whether GSTIN advisory of November 24 regarding 30 days time for generating e-invoice where aggregate turnover exceeding 10 crore is effective from 1st April, or is there any change? Ma'am, I feel as far as I remember, it is effective from 1st April. क्योंकि लास्ट मैंने भी देखा था तो कुछ मुझे दिखा नहीं चेंज, बट आई थिंक कि आपसे एक बार कर लें नहीं, कंफर्म, as far बिकॉज ये as कई I बार। remember, it is हम्म। also मतलब 1 अप्रैल से ही है मैम। क्योंकि जित if पीछे I'm पीछे एडवाइजरी भी इन्होंने चेंज कर दी है ना, बैक डेट वाली में भी लैंग्वेज चेंज किया था, वो एचएसएन वाली जी एडवाइजरी जो जी इनकी जी आई जी थी। जी 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 जी। ठीक है सर। देन Common ITC to be distributed on turnover basis. Suppose a plant is under installation process and common security services bills is received by head office. What will happen to ITC which belong to this new plant where sale is not yet started? मैम, आपका जो रूल, ये आप आईएसडी का पूछ रहे हैं शायद। जी जी इसमें जो जी। रूल 39 है मैम, वो क्लियरली बोलता है कि इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ टर्नओवर बेसिस। बट ऐसे ये चैलेंजेस हमारे पास सर्विस टैक्स एरा में भी है, जब हम्म उसकी कोई टर्नओवर थी ही नहीं। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल तो आपने ही डिस्कस किया है कि जब वो एक इंस्टॉलेशन हो रही है और अभी तक तो सेल्स शुरू ही नहीं हुई। कुछ हम्म। दूसरे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं मैम, जहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्टेट है जो, या जीएसटीएन है जो कॉस्ट सेंटर ही नहीं है। ठीक, तो राइट। अब उस केसेस में भी ये चैलेंज आया, तो उन केसेस में ऐसी जजमेंट्स हैं, दो लॉ इज साइलेंट ऑन दैट। बट कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको टर्नओवर का ही बेसिस लेना है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन सम अदर रेशियो ऑल्सो। ओके। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और आप इस वाले पर्टिकुलर केस में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझने की है, देखने की है कि इसमें आईटीसी मेरे को डिस्ट्रीब्यूट भी करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्योंकि सामने वाले की जब कोई टर्नओवर ही नहीं है, वो आईटीसी किसके अगेंस्ट यूज करेगा? बट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेल तो करेगा ही वो, हाँ, तो तो फिर उस एक्यूमुलेट केस करके में मैडम यूटिलाइज मेरा तो। ये कहना है कि आपको कोई दूसरे रेशियो में करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक केस आया था जिसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के बेसिस पे करा था, राइट, क्योंकि वो ठीक। टर्नओवर के बेसिस पे हो नहीं सकता था, तो हमने हम्म। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो यू नीड टू हैव अ रीजनेबल बेसिस, जिससे कल डिपार्टमेंट आए तो आप दिखा सके कि मैंने आर्बिट्रेरली नहीं किया। क्योंकि राइट, ठीक। आर्बिट्रेरली का मतलब क्या है? कल को पता चला उस स्टेट में 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, मेरे पास कैश नहीं था, हाँ, मैंने नहीं वहां से उठा के नहीं। ट्रांसफर कर दिया। मेरे गॉट पास इट, यहाँ गॉट आईटीसी इट। था, तो ऐसा बहुत बार होता था और करते हैं लोग। तो गॉट इट। टू अवॉइड दैट बेसिकली हम लोगों ने ये जो है, एक कोई रीजनेबल बेसिस होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, इन दैट ओनली यू शुड डिस्ट्रीब्यूट। इसी से एक लिंक क्वेश्चन है आईएसडी से ही, लाइक वहां पे जैसे आपने बताया कि वो मंथली बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जी अगर किसी मंथ का कोई रह जाता है तो मैं उसको इन नॉर्मल केसेस नेक्स्ट मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कुछ अलग लिमिटेशंस है आईएसडी के कर केस सकते में? हैं मैम। इसमें मैंने एक केस देखा था, शायद राजस्थान साइड का था, जिसमें डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि आपने लेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसका इंटरेस्ट लगाया था। ओके। डिस्ट्रीब्यूट पे कोई बाढ़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि कल को, मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे जहां पे हम्म। डिपार्टमेंट इस तक को पॉइंट आउट करता है कि आपको इस मंथ में करना था, आपने इस मंथ में क्यों नहीं करा, आपने ओके। 3 महीने बाद क्यों करा। ओके। तो सिर्फ वो इम्प्लीकेशन आपके ऊपर आ सकती है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट तो आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने पे कोई बाढ़ नहीं है कि आप ठीक अगले है। महीने नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक। ओके। Please confirm Annexure 8 is for declaration by a person applying for registration declaring the premises to be a specified premises, and for existing case it's Annexure 7. मैम, Annexure 8 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें अगर मान लीजिए मेरा स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, हम्म। तो मैं ऑप्ट इन डिक्लेरेशन है बेसिकली, जिसमें मैं ऑप्ट ओके। इन डिक्लेरेशन देता हूं कि मेरा स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड डिक्लेयर कर रहा हूं।
और अगले हम्म। 1 साल तक मैं जो है इसमें 18% विद आईटीसी दूंगा। और सिमिलरली एक दूसरी डिक्लेरेशन है अनेक्शर 9 जो इंट्रोड्यूस हुई है, हाँ। जो ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन है। मतलब मैंने वॉलेंटरीली ऑप्ट इन किया था अनेक्शर 8 में, लेकिन मेरे को 1 साल बाद लगा कि मेरे को 18% विद आईटीसी फायदेमंद नहीं लग रहा है, तो मैं अनेक्शर 9 में ऑप्ट आउट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से फिर मैं अब अपना 5% विदाउट आईटीसी में ही जाऊंगा। ओके, तो आई विल चेक इट अगेन, क्योंकि यही मुझे कंफ्यूजन आ रही थी। आई वाज चेकिंग 16th जनवरी नोटिफिकेशन, तो वहां पे हाँ, कुछ। उसमें अनेक्शर 8 और अनेक्शर 9 इंट्रोड्यूस हुए मैम। ओके, तो मैं देख लूंगी एक बार। थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हैं। दिव्या भाटिया जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द आईटीसी नॉट टेकन ऑन गुड्स इन स्टॉक और सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स इन रेस्टोरेंट्स। मैम इसके लिए जो है एक प्रोविजन है, मैं नंबर सेक्शन नंबर भूल रहा हूँ, शायद 18 होगा, जिसमें ऐसे केसेस कवर्ड हैं जब मान लीजिए मेरी कोई लेवी नहीं होती और ऑल ऑफ अ सडन लेवी शुरू हो जाती है, तो ऑल दोज केसेस विल बी गवर्न्ड बाय दीज प्रोविजन। जैसे ट्रांजिशनल में भी हमारा ये वाली बात थी कि जब मैं पुराने लॉ में लेटर सपोज मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ लेकिन जीएसटी में मुझे टैक्स पे करना है, तो ट्रान वन में एक कॉलम था अलग से जिसमें मैं फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स जो मेरे लाइंग इन स्टॉक है 1 जुलाई 2017 को, मैं उनकी डिक्लेरेशन देता था कि मेरा इतना आईटीसी उसमें है और मैं उसको ले लेता था, क्योंकि अब जब मैं गोइंग फॉरवर्ड 1 जुलाई 2017 के बाद उनको सेल करने जा रहा हूं तो मैं उस पर जीएसटी पे करूंगा। तो इन अ हम्म। सिमिलर मैनर जो रेस्टोरेंट्स में सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड है, वैसे तो रेस्टोरेंट में क्या सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड होगा, खाना या तो बन के चला गया या नहीं गया, लेकिन जैसे एग्जांपल है आटा रखा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि जी मैंने आटा खरीदा था, जीएसटी पे किया था, आधा आटा मेरे पास रखा हुआ है, अब मैं इस आटे से जो भी रोटी बनाऊंगा वो मैं 1 अप्रैल 2025 के बाद मैं उस पर 18% टैक्स पे करने वाला हूँ। तो इन दैट केस आपको जो है वो आईटीसी सारा का सारा मिल जाएगा, वो आईटीसी लैप्स नहीं करेगा। कुछ हद तक ये कंपोजिशन का जब वो ऑप्ट आउट करते हैं सेम टू है गो मैम। इनटू सेम, सेम उस तरह से सेम। हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं सर। आप ही का क्वेश्चन है मैम, अंडर कंपोजिशन स्कीम सेल्स प्राइस शुड बी एमआरपी लेस जीएसटी यूजिंग ग्रॉस अप फॉर्मूला और कैन बी सोल्ड एट एमआरपी एंड जीएसटी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। दिस आई रिसीव्ड इन व्हाट्सएप की ये ये वाली क्वेरी क्लियर करा दो तो अभी सेल्स जस्ट आपके प्राइस शुड बी सेशन के बीच एमआरपी में। लेस जीएसटी और कैन बी सोल्ड। मैम कंपोजिशन में एज फार एज आई रिमेम्बर आपको एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स पे करना होता है, यस। और ये आपको सामने वाले से चार्ज नहीं कलेक्ट नहीं करना होता। यस, तो उसका जो एमआरपी क्वेश्चन, लेस जीएसटी की तो बात ही नहीं आएगी, आपकी इसमें एमआरपी सौ क्वेश्चन ये आ रुपए रहा है कि जैसे 100 रुपीज का एमआरपी है एक आइटम का, हम्म। एंड नाउ ही वांट्स टू नो कि वो 100 रुपए का कस्टमर को बेच सकता है क्या, कि 100 रुपए का उसने हाँ, बेचा तो 100 रुपए का उसका टर्नओवर हुआ, उस पर उसने 1% जो उसका टैक्स बना वो जमा करा दिया। तो तो इज एमआरपी इट पे इज इट बेचेगा मैम, राइट? ये कम बिकॉज ड्यूटी की तरह से करने की जरूरत नहीं है कि आपको 99 पे बेचना पड़ेगा, कल को कोई आगे क्योंकि बोलेगा आपने एमआरपी 4 तो दिन कलेक्टेड इंक्लूडिंग बिल। टैक्स होता है, तो हाँ, तो कंफ्यूजन लेकिन फिर आता ये है। एमआरपी पे जाएगा मैम, ये आपका ऐसा नहीं होता है, ये इंक्लूडिंग टैक्स का जो कंसेप्ट है हाँ वो हाँ। ये है कि जहां पे लगा है टैक्स वहां पे इंक्लूडिंग है। ओके। This concept is कि if you are not charging and collecting tax over and above the taxable value, then the taxable value will be deemed to be including the taxes. This is the concept. बट अगर हम इसको नॉर्मल रेगुलर केस का देखते हैं कि अगर कोई रेगुलर रेगुलर केस का आप देखते रजिस्टर्ड हैं तो है। एमआरपी में इंक्लूडिंग टैक्सेस इसीलिए होता है क्योंकि आप एमआरपी के ओवर एंड अबव कुछ जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। हम्म। करेक्ट। तो क्योंकि हम इसलिए उसमें एमआरपी अलाउ। इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है। लेकिन ओके। आपका जिस केस में कंपोजिशन पे यू हैव टू पे, उसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप 100 - 1 करेंगे, आप 100 रुपए पे पे कर सकते हैं और 1 रुपया आपको अपनी जेब से जीएसटी जमा जमा करना करा है। सकते हैं। यस। ओके, नेक्स्ट। Is there any limit of tax amount to file appeal by the department against its own OIO passed by first authority? सर मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपका फर्स्ट अपील की बात करें तो कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। अगर 10,000 रुपए का भी ऑर्डर पास हुआ और डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील में जाना चाहता है, इट कैन गो। बट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनेटरी लिमिट जो है वो सेट की गई है एज पर द 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। थैंक यू जैन सर। हाँ। मधुमिता जी ने क्वेश्चन पूछा है, वेदर टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज लायबल फॉर जीएसटी लाइबिलिटी। टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, टेक्निकल डायरेक्टर का मतलब क्या है, इस पे तो एक सर्कुलर आया था। अगर आप फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर का कंसेप्ट है, अगर डायरेक्टर आपकी एम्प्लॉयमेंट में है तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा कंपनी के ऊपर, लेकिन अगर डायरेक्टर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है
तो उस केस में कंपनी को रिवर्स चार्ज में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे टैक्स पे करना है। तो टेक्निकल डायरेक्टर मेरे को नहीं पता मैम, इसको आप एम्प्लॉय बोलेंगे या इंडिपेंडेंट बोलेंगे। एम्प्लॉय है, फॉर्म 16 है अगर, तो उस केस में आपका रिवर्स चार्ज नहीं आता है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपका रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है। नेक्स्ट एक राधिका पांडे जी का क्वेश्चन है। Radhika ji ka, in case of startups, there is a lot of accumulation of ITC due to huge marketing expenditure and low sales. Is there any way to get refund? No, ma'am. There is no way. You keep accumulating and pray to God कि आपका स्टार्टअप चल पड़े और आपकी सेल्स रॉकेट शूट अप करे और सेल्स पे आपको जीएसटी पे करना पड़े और आपको आईटीसी मिल जाए। बट लॉ आपका सेक्शन 54 कहीं पे भी अलाउ नहीं करता है कि अगर एक्यूमुलेशन है, सेल्स नहीं हो रही है, तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। एक और क्वेश्चन और था। जी मैम। जो कैपिटल गुड्स का है, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे पता लगा कि पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स अवेलेबल है ही नहीं है, दैट गुड कैपिटल गुड्स इज मिसिंग। अब मिसिंग है तो उसको सॉरी बुक्स में मैम, राइट। सॉरी सॉरी, एक बार दोबारा यस। बताइएगा। हाँ, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ईयर एंड पे, देन वी जी। गेट टू नो दैट कैपिटल गुड्स इज नॉट देयर एंड इट इज मिसिंग। तो जी। इट इज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर दैट मैटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसका आईटीसी किस रिवर्स तरह करना से पड़ेगा रिवर्सल मैम। करना है, किस तरह से? बिकॉज जो 18(6) है वहां पे वर्ड सेल लिखा हुआ है आई थिंक। नहीं मैम, डिस्पोज ऑफ पे भी करना है ना डिस्पोज आपका। ऑफ जो पे कर लेंगे, रिटर्न ये ऑफ है एंड सेक्शन डिस्पोज सत्रह ऑफ। पाँच एच है, 17(5)(h) आपको बोलता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड। देखो बट इसमें दो बट वो गुड्स की प्रोविजंस। बात करता है, मेरा कैपिटल कैपिटल गुड्स है। गुड्स भी तो गुड्स ही है मैम। कैपिटल गुड्स वहां पे कैपिटल अपने जीएसटी डेफिनेशन में तो अलग अलग किया हुआ है ना दोनों उसमें। आता है मैम। नहीं 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 नहीं, दोनों आता है। आपके ना इसमें दो प्रोविजंस प्ले करते हैं मैम। एक हम्म। प्रोविजन है शेड्यूल 1, जहां पे आता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हम्म। इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर आप उस पे टैक्स, और इसके साथ दूसरा आता है 17(5)(h). 17(5)(h) बोलता है कि जहां पे आपने आईटीसी लिया हुआ है और आपने उसको लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड कर दिया, वहां पे आपको आईटीसी रिवर्स करना है। अब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि आप आउटवर्ड पे टैक्स भी पे करेंगे शेड्यूल 1 में जाके और आप आईटीसी भी हम्म। रिवर्स करेंगे। तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट, कि इधर आप जो परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स कर रहे हैं, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, यू हैव टू चार्ज सम कंसिडरेशन, चाहे वो नोशनल वैल्यू हो मार्केट प्राइस की, और आपको उस पर जीएसटी पे करना है। इन दैट केस यू डोंट नीड टू रिवर्स एनी आईटीसी। गॉट लेकिन इट। अगर मान लीजिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो इन दैट के 17(5)(h) आप पे अट्रैक्ट करता है और आपको उस पर पे करना है। और इसके लिए तो मेरे को लगता है आपको 43 रूल भी एक बार देखने की जरूरत है मैम, क्योंकि 43 रूल भी आपका कैपिटल गुड से डील करता है और उसमें भी कुछ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। दो मैं इमीडिएटली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट उसमें भी कुछ ऐसा है कि परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से आपको आईटीसी रिवर्सल करना होता है। 5%, मतलब 60 मंथ्स में स्प्रेड आउट करना होता है उसकी लाइफ को, एंड उसके हिसाब से यू नीड टू रिवर्स एज पर द सेल वैल्यू। गॉट इट। गॉट इट। एक छोटा सा क्वेश्चन और था, इफ यू अलाउ। प्लीज प्लीज मैम। एक, जैसे आपने अपने स्लाइड में भी कवर किया था उसको कि लाइक मिसलेनियस इनकम और अदर इनकम जो होती है उस पे आप जीएसटी का अपना जो डिस्चार्ज करनी है लाइबिलिटी उसको चेक करें। अब ज्यादातर आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि शेयर्स की इनकम बहुत आ जाती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, और ये वहां पे क्या किसी भी उसमें हमें आईटीसी को रिवर्स करना है क्या? लाइक कोई मैम परसेंटेज या? आपके सेल ऑफ स्टॉक्स पे रूल 42 में एक प्रावधान दिया हुआ है कि आपको 1% ऑफ द सेल वैल्यू, या फिर जो वो है प्रॉफिट, विच एवर इज हायर या लोअर, ऐसे करके कुछ है, हम्म। उतना आपको आईटीसी रिवर्स करना है। दैट इज द ओनली लिमिटेशन। तो दिस ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि यस। ये आइटम ऐसा है जो आजकल बैलेंस शीट में, मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट में देखने मिल जाता है। और होता है मैम, आईटीसी सब रिवर्सल सरप्लस मार्केट में ही डाल रहे हैं आजकल। और आईटीसी रिवर्सल एक बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक with this we come to end of the queries from our participants. So I will formally give you a vote of thanks, Anmol ji. A थैंक यू very wonderful session. बहुत ही बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई, एंड आई एम श्योर कि जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें गेन किया होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने सारी क्वेरीज भी हमारी दी। हमारी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अ पेशेंस लिसनिंग की, और क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे, तो दैट इट आल्सो एनकरेज अस एंड स्पीकर्स टू कि वो और उसको करें अच्छे से। With this, thank you so much, and
We hope to see you soon again. Thank you, ma'am. Radhika ji, thank you for your words of appreciation. Anmol ji, this is for you for a great session. Thank you, Radhika ji. Thank you. Okay, okay. Thank you, Jain साहब. Thank you. Thank you. मैं देख रही हूँ अमरनाथ सिंगला सर. Thank you for joining, sir. Gambhir ji, Smriti ji, thank you so much. So now I will be first recording stop and then I will close the session. Thank you.